टीएस एनडीए के अगर बीच में मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस से लेके ट्रेनिंग, डिग्री एंड द करियर अपॉर्चुनिटीज, इन सारे फैक्टर्स के अंदर क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? In राइट। ND, you can go to other arms also, like Air Force and Navy also. But in TSNT, you'll get only armies. तो उनको पता चला, मैंने आके अपने OCD को बताया कि मेरी बटन की वजह से आई स्लिप चली गई है। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, एक काम कर, अपनी सारी यूनिफॉर्म्स लेके आ। कटर दिया, उन्होंने बोला कि इससे अपने सारे बटन काट। तो मैंने अपने सारे एक एक करके सारे बटन काटे, बोला कि अब बैठ के सिलना और शाम को मेरे पास लेके आना। तो फिर वहां से मैंने बटन सिलना सीखा कि कैसे सिलते हैं। बेसिकली मेरे एक सीनियर थे, मतलब उन्होंने ऐसा रूल बनाया था कि देयर इज अ टर्म ही यूज्ड टू से गेट वेट। तो हम जैसे जाते थे बाथरूम में, पूरा ऊपर से नीचे जो भी हमने यूनिफॉर्म पहनी होती थी उसमें पूरा गीला होके आ जाते थे, पूरे गीले होके आए और उसमें बैठे। कोई भी रगड़ा वगैरह या फिर कोई यूनिफॉर्म खराब नहीं करेंगे आप, बट आपको मेंटली टॉर्चर करते थे वहाँ पे। जैसे मैं दूध वाला इंसिडेंट बता रहा था कि 10 गिलास दूध की पिलाती हूँ, खाना खिला रहे हैं एक तरीके से आपको, बट आपके लिए वो पनिशमेंट हो गई है। Academy life is all about punishments. नो मैम, आई डोंट थिंक सो। इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। Cadet constantly think about quitting the academy. तो देर आर टाइम्स इन एकेडमी जब आपको घर की याद आती है, होम सिकनेस होती है और पेरेंट्स की याद आती है, और फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 11th-12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो फॉर दोज पीपल व्हाट इज़ योर एडवाइस एंड हाउ शुड दे स्टार्ट प्रिपरेशन? Hi everyone, welcome back to Defense Roger, and I hope you're doing well. My name is Sheetal Yadav, and if you're preparing for NDA or any exam, there is one resource that can simplify your preparation. That is PW Shaurya NDA and NA book set. This is a complete set of 4 books designed to cover the entire syllabus. The mathematics books that include the precise chapter-wise theory, solved example, practice exercises with solution, hand-picked previous year questions, chapter-wise weightage, and detailed analysis of the last 5-year pattern. For journal ability test, you get dedicated books for English and science, covering concept, solved examples, practice questions, and PYQs with detailed explanation which will help you to understand the mistakes. The journal knowledge book cover history, geography, polity, economics, journal awareness with ease to understand the theory, maps, diagram, illustrations, topic-wise exercises, previous year questions and key points, and subject wise weightage analysis. What makes this set useful is that it does not just provide the questions, it explains the concepts and help you to analyze previous year trends and give you a structured practice in one place. If you're looking for a complete ND and NA preparation package, the PW Shaurya 4-book set is definitely worth checking out. It covers everything you need to prepare with confidence. The link is going to be in the description. Don't forget to check it out. In today's video, we have a very special guest. Today we have Yogesh Sharma, who comes from an army background, study at Army Public School, and after multiple SSB attempts, he finally got recommendation through TAS 47 and secured All India rank 42 and joined OTA Gaya. During his training, he held key appointments like Junior Under Officer and Company Quartermaster Sergeant, and later moved to CME Pune to pursue civil engineering while continuing his military training. After spending nearly 3 years in the military, he unfortunately had to leave the academy due to the medical reasons. In this entry, we have tried to understand the basic difference between NDA entry and TS entry, the life of a cadet in OTA Gaya, along with that, the discipline, the military life, and the training anecdotes we have tried to cover all in this episode. I hope you will get to learn a lot from this video. Without any further delay, let's get back to the video. Hi, Yogesh. Thank you so much for joining me for this podcast. And especially somebody who has explored so many things in life. And I'm sure आपकी पूरी जो journey है, a lot of people are going to know more about you, your experiences, your learnings, very beneficial. And definitely TAS entry, because मुझे लगता है कि this is the most unexplored entry by candidates, because जब भी 12th के बाद की entries के बारे में बात होती थी, NDA की reels इतनी viral होती हैं, तो मुझे लगता है कि moreover people are aware about just NDA. And now a time TS entry regarding awareness fell, right? So thank you so much for being here, and I'm so happy that you have joined me. Thank you, ma'am. Thank you for giving this opportunity to be on this platform. Well, Yogesh, I've seen your videos. They are so much informative. You try to cover different aspects of training जो आपने experience करी है, and you are creating a lot of awareness. So I wanted to appreciate the work that you are doing, and I really want to know more about you, because there will be a lot of people who might be watching this video for the first time, so that they will have an idea कि हम आपकी journey कैसी रही है अब तक, and हम किस तरह की चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं.
So basically, ma'am, I'm ex-officer cadet Yogesh, and talking about me, I belong from Jaipur, Rajasthan, and I've done more than 3 years of training at Officers Training Academy and Cadets Training Wing College of Military Engineering. And basically, I was boarded out from there, and we have talked about like TS entry. So I was from the TS entry, TS 47th course, and I was All India rank 42 at that time. So in my third attempt, I cleared my SSB. Then I went to academy. I completed my basic military training from Officers Training Academy Gaya, and then 2 years of BTech from CME Pune, and from there I got boarded out. Okay. I mean, you are very strong, I have to say, because जैसे आपकी videos देखती हूँ, I always feel like you're very energetic throughout the time, and that, military training जो आपने ली है, I can sense it to your videos as well. But I would really like to start it with the TS entry. You know what exactly is TS entry and why it is the least understood officer entry to become an officer in the Indian Army. So इसके regarding क्या requirements है, क्या eligibility criteria हैं, क्या selection process है? Is it same like NDA? और इज इट सम वे डिफरेंट कंपटीशन लेवल के बारे में बात करना चाहूंगी सो ईच एंड एवरीथिंग दैट यू फील लाइक इस एंट्री की रिगार्डिंग हमें कवर करना चाहिए योगेश प्लीज कवर इट ऑल तो बेसिकली आजकल बहुत सारे लोगों को पता है अबाउट द TS entry. It stands for Technical Entry Scheme. It is a 10+2 entry basically, and like in NDA we have to give a written examination and thereafter we appear for the SSB. But in TS entry, on the basis of your JE percentile and your 12th percentage, you get the call up letter for the SSB interview. So it is somewhat same, but the written part is just missing in the TS entry. Otherwise, the same interview is being conducted as it is राइट conducted in the NDA entry. So, like basically, there is a rank criteria in the JEE mains score that you get. Like last time, it was around 3,50,000. Those candidates who got rank under 3,50,000, they got their SSB call letters. ओके So once you appear for the SSB and you get recommended from there, and you go to the academy. Like during my times, it was like कि पहले you have to go to OTA Gaya for 1 year of your BMT, then 3 years of training at CTWs, that is Cadets Training Wing. There are total three CTWs all over India. One is in Pune, CTW CME, College of Military Engineering. One is in Mau, MCT, and one is in Sikandrabad, MCEME. And like all three CTWs cater for all different engineering degrees, and you go to different arms from there. ओके So basically, starting with like the initial phases when you get recommended or uske baad. So I went to OTA, then I did my CTW training. But nowadays the pattern have been changed. You directly go to the CTWs. पहले आप CTW जाते हो, वहाँ पे 3 साल की ट्रेनिंग करते हो. You complete your BTech in 3 years. Earlier it used to be 4 years of BTech. Now it's been integrated course in 3 years only. So it was like कि 3 साल पहले हमने before commissioning we did our engineering. Once we get commissioned from OTA, we came back to our respective colleges, and from there we complete 1 year of BTech from there. But now candidates directly go to the CTWs for 3 years. They complete their BTech, and then they go to the IMA for their BMT, and from IMA they pass out and get commissioned. So ओके it is the basic like requirement and procedure that's there. And talking about the difference, the only difference I feel for the selection process is the written part only. In NDA, you have a written examination, but in the TSNT, don't have any written examination. ओके सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एंट्रीज सो जर्नली मैंने देखा है कि टीएस और एनडी की रिगार्डिंग कंपैरिजन ढंग से डिस्क्राइब्ड कहीं नहीं है आई मीन देयर इज नो डेडिकेटेड वीडियो विच आई हैव सीन विच इज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एंट्री लाइक टीएस एनडी के अगर बीच में मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस से लेके ट्रेनिंग डिग्री एंड द करियर अपॉर्चुनिटीज इन सारे फैक्टर्स के अंदर क्या मेजर डिफरेंसेस हैं और किस तरह का कंपटीशन है reason being everybody is much more emphasizing on NDA because of the trend which you see हर जगह Yes, न्यूज चैनल से लेके या मोर ओवर उन्हें सबको यही लगता है कि 12th के बाद अगर कोई एग्जाम है फौज में ज्वाइन करने के लिए दैट इज एनडीए बट टीएस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एन ऑफिसर एंड एवरीथिंग इज सेम बट आई वांट टू yes, नो sir. फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू लाइक क्या डिफरेंसेस हैं और क्या की डिफरेंसेस हैं What I feel मैम कि like the basic difference I feel कि ज्यादातर लोग एनडीए में क्यों जाते हैं, बेसिकली द एनवायरनमेंट और जो हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं, हमें ज्यादातर एनडीए के बारे में जो ज्यादा हमें चीजें पता चलती हैं बेसिकली. और
इतनी टीएस के बारे में चीजें लोगों को इतनी अवेयरनेस है नहीं आज के टाइम पे, बट धीरे धीरे इट्स बीन इंक्रीजिंग विद टाइम। बट द थिंग इज कि एनडीए में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, तो पीपल फोकस ऑन द रिटन एग्जामिनेशन पार्ट। बट in NDA, if you'll see, only things like I'm talking about the army, because TS entry only offers you army only. In Right. NDA, you can go to other arms also, like Air Force and Navy also. But in TS entry, you'll get only army. So I will compare between NDA, army, and TS. Okay. So like in NDA, when you go to the academy, basically you will get the opportunity to do BA or BSc. Mm-hmm. फॉर दी आर्मी पर्सन आई एम सेइंग, जो कैंडिडेट्स होते हैं वहाँ पे, कैडेट्स होते हैं, आर्मी परस्यू करते हैं, तो उनको दो ही ऑप्शन मिलते हैं, इधर बीए और बीएससी। बट इन टीएस एंट्री इट्स डिफरेंट, यू विल डायरेक्टली गेट, like you don't have any option, you have to do BTech only. Mm-hmm. And it is a technical entry, so basically you will be getting technical arms in future. And as such we can see in nowadays in upcoming times, like the technical arms और आर्मी के अंदर न्यू वेपन्स और ये सारी चीजें इंडक्ट हो रही हैं। तो Mm-hmm. बेसिकली मोर फोकस इज ऑन मॉडर्न वॉरफेयर। पहले ऐसा होता था कि इट यूज टू बी लाइक ट्रेडिशनल वॉरफेयर, कि हमें ऑन फुट सोल्जर्स की ज्यादा नीड थी। बट इन नाउ डेज वील सी की मेजर फोकस है अपने साइबर सिक्योरिटी हो गया, साइबर वॉरफेयर हो गया, ड्रोन्स के ऊपर। तो इन टुडेज टाइम आई फील कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अगर हम आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखें, तो इट इज बेटर, बिकॉज आप बीटेक कर रहे हैं, यू विल बी टेक्निकली मोर नॉलेजेबल देन द पर्सन हु इज डूइंग बीए और बीएससी, और आपको फोर्स से रिलेटेड वही चीजें पढ़ाई जाएंगी वहाँ पे। Mm-hmm. सो बेसिकली दैट इज द मेन डिफरेंस। और अवेयरनेस की बात करें तो मैम, बेसिकली द सीट्स इन टीएस एंट्री आर वेरी लिमिटेड, लाइक इफ विल कंपेयर विद द एनडीए एंट्री, देयर अराउंड 500 400 500 सीट्स आती हैं एक उसमें। और इन टीएस एंट्री देयर आर ओनली 90 सीट्स। तो 90 लोग रहते हैं, तो उनमें से बहुत लाइक सेलेक्टेड लोग रिकमेंड होते हैं, और बहुत कम लोग एकेडमी जाते हैं। तो वही कंपेरेटिवली कि सीट्स कम है, तो अवेयरनेस भी उसी तरीके से कम होती है, लोगों को कम पता है। और इतनी पब्लिसिटी भी आज के टाइम पे हम देखेंगे नहीं, क्योंकि एनडीए को वहां हम देखे 75 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, वहीं टीएस एंट्री को सिर्फ 25 ईयर्स हुए हैं अभी। तो Right. बेसिकली विद टाइम व्हेन बेटर ऑफिसर्स और ज्यादातर लोग टीएस एंट्री से जाएंगे, मे बी विद टाइम सुपीरियर जो ऊपर ऑफिसर्स है जाएंगे, तो मे बी देयर वुड बी सम चांसेस कि उस चीज के अकॉर्डिंग अवेयरनेस ज्यादा लोगों को पता चले। Mm-hmm. एंड दैट इज द थिंग मैम, बेसिकली द मेन डिफरेंस आई थिंक। Are girls eligible for this? And I'll give a disclaimer. My questions are going to be like for the candidate who is going for the first time. So I want to cover each and every aspect asking you such things. So क्या girl जितने भी female हैं, are they eligible for this entry? नो मैम, आई थिंक इट्स द ओनली एंट्री इन Mhm. इंडियन आर्मी, लाइक बाकी सभी एंट्रीज में गर्ल्स हैव बीन इंडक्टेड। सो टीएस एंट्री बची है जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स नहीं आती, बाकी सभी एंट्रीज में देयर आर गर्ल्स। Okay. Take me through your journey, Yogesh, from clearing the SSP to finally reporting to the academy, and क्या expectations थी और क्या reality ने hit किया जब आप academy गए? So what were the differences? सो मैम बेसिकली जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, लाइक इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीरियड जो एक महीना रहता है बिफोर ज्वाइनिंग द एकेडमी, और वेरी हैप्पी, पेरेंट्स आर आल्सो हैप्पी। तो मैं भी बिल्कुल रेडी था, और आई यूज्ड टू सी वीडियोस की एकेडमी में क्या क्या होता है। इतनी मच लाइक इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, लाइक आई हैव स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, बट एट दोस टाइम्स कोई ऐसे बनाता नहीं था इस टाइप की वीडियोस। एकेडमी बेसिकली होता क्या है, किस टाइप की चीजें होती है, बस सुनने को मिलता था कि ऐसे रगड़ा पनिशमेंट मिलता है, ये सब बहुत Right. हार्ड और रिग्रेस ट्रेनिंग होती है। तो आई यूज टू सी सम वीडियोस, और फिर बाकी हम मूवीज वगैरह से अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं कि बेसिकली ऐसा होता होगा एकेडमी के अंदर। बट द लाइफ इज टोटली डिफरेंट, जैसा हम सोच के जाते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वेन यू गो टू द एकेडमी, मुझे याद है कि मैं फर्स्ट डे जब एकेडमी गया था बेसिकली, एंड रिपोर्ट किया था वहाँ पे, तो लाइक वहाँ पे हमारे जो ड्रिल उस्ताद होते हैं वो हमें लेने आते हैं स्टेशन पे, वी ऑल ऑफ अस गैदर एट द स्टेशन, और वहाँ से बस आती है, वी गो टू दी ओटी। तो ओटी के गेट के अंदर गए हम, वी ऑल वर वेरी हैप्पी। जाते हैं, तो इनिशियली क्या होता है कि यू आर गिवन 1 और 2 वीक्स का हनीमून पीरियड बोलते हैं उसे एकेडमी के अंदर। सो Okay. बेसिकली एट दैट टाइम्स आपका सीनियर से कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, बेसिकली जो साहब वगैरह होंगे, आपके ऑफिसर्स होंगे, डीएस वगैरह, वही आपसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक और है. आपको कोई रगड़ा वगैरह इनिशियली नहीं मिलता है। इनिशियली ये फोकस रहता है कि नया नया कैडेट आया है बाहर सिविल से, तो उसको चीजें सिखाई जाएं। पहले स्टार्टिंग में अगर सीनियर्स के हाथों में दे दिया, तो वो तो बिल्कुल उसको इंजर्ड कर देंगे इनिशियली आते ही। तो ये फोकस रहता है कि उनसे थोड़ा दूर रखा जाए, और बेसिकली आपको थोड़ा क्वारंटाइन करके रखा जाता है, उनसे थोड़ा दूर रखा जाता है कि आप कम से कम इंटरेक्ट करो। Mhm. और इनिशियली जब एकेडमी में जाते हैं मैम, तो बहुत सारी नई चीजें होती हैं। इनिशियली मतलब ऐसा होता है कि बहुत नई चीजें हो रही होती हैं, और ऐसी चीजें होती है जो आपने पहले कभी की नहीं होती हैं, तो वो चीजों के साथ अडेप्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है।
लाइक मेरे को याद है कि लगभग 1 महीने तो मुझे याद भी नहीं था कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बस जो ऑर्डर्स मिल रहे थे वो हम फॉलो कर रहे थे बेसिकली। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें लगता है कि सिविल लाइफ में कि बहुत ईज़ी होगा, बट आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ। तो मतलब मैं इनिशियली गया तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में, लाइक मुझे शेविंग भी प्रॉपर नहीं आती थी। लाइक इनसे थे उस चीज़ को, तो वो भी प्रॉपर्ली करना कि एक थोड़ा-सा भी पार्ट आपका विज़िबल नहीं होना चाहिए हेयर्स का। तो इस तरीके से अपनी यूनिफ़ॉर्म्स को मेंटेन करना, इनिशियली आयरन नहीं करना आता था। तो वो चीज़ें सीखना, और भी बेसिक अगर मान लो कोई बटन टूट गया तो बटन सिलना नहीं आ रहा है, वो चीज़ें मतलब हम सीख के नहीं जाते हैं छोटी-छोटी चीज़ें, बट उसके बहुत अलग तरीके होते हैं। मतलब कि मुझे आज भी एक फ़नी इंसिडेंट याद है कि ड्रिल का कुछ टाइम था, और ड्यूरिंग ड्रिल ड्रेस चेक होता है, तो जो हमारे ड्रिल उस्ताद थे उन्होंने ड्रेस चेक किया और मेरा बटन टूटा हुआ था, तो मेरा ध्यान नहीं रहा सुबह-सुबह जल्दीबाजी में, और जूनियर टर्म्स में ऐसे रहता नहीं है। तो उन्होंने मेरी आई स्लिप ले ली बेसिकली फॉर पनिशमेंट। तो जब आपकी पनिशमेंट आती है तो जो ओवर स्टडी रहते हैं आपके, उनकी भी पनिशमेंट बेसिकली ऐसा चलता था वहाँ पे। तो उनको पता चला, मैंने आके अपने ओवर को बताया कि सर ऐसे-ऐसे मेरी बटन की वज़ह से आई स्लिप चली गई है। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, एक काम कर अपनी सारी यूनिफ़ॉर्म्स लेके आ। और सारी यूनिफ़ॉर्म लेके आया, फिर वो एक कटर दिया, उन्होंने बोला कि इससे अपने सारे बटन काट। तो मैंने अपने सारे एक-एक करके सारे बटन्स काटे, बोला कि अब बैठ के सिलना और शाम को मेरे पास लेके आना। तो फिर वहाँ से मैंने बटन सिलना सीखा कि कैसे सिलते हैं। इनिशियली नहीं आया मुझे, मैंने थोड़ा बहुत गलत किया, बट वही इट वाज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ऐसे लगता हुआ लोगों को कि क्या फालतू चीज़ें करा रहे हैं। बट आई थिंक एवरीथिंग इज़ मेड फॉर सम रीज़न, और बहुत स्ट्रक्चर तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं अंदर। तो कुछ बिल्कुल। भी फालतू का नहीं होता, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट थिंग कि वो राइट। क्यों करवा रहे हैं आपसे। सो दैट वाज़ द थिंग, और ऐसे मतलब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें थी मतलब जो सीखी मैंने। और इनिशियली इट वाज़ टफ कि चीज़ों के साथ कोप अप करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है कि आपके साथ दिन भर आपकी सुबह पीटी चल रही है, फिर ड्रिल एकेडमिक्स क्लासेस चल रही हैं, आप जग रहे हो, आपको अपना रूम भी मेंटेन करना है, ड्रेसेस भी बनानी है, पढ़ाई भी करनी है, स्पोर्ट्स भी खेलना है, और देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज़, तो उनके साथ कोप अप करने में थोड़ा टाइम लगता है आपको। बट विद टाइम लाइक आप अकेले नहीं होते, आपके साथ आपके कोर्समेट्स भी होते हैं। तो विद टाइम उन चीज़ों के साथ आप अडैप्ट कर जाते हो, फिर बिल्कुल नॉर्मल लगने लग जाता है। एक पेस पे फिर आपकी लाइफ़ चलती है अकेडमी के अंदर। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि 2 महीने तक सीनियर्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था, हाउ वाज योर फर्स्ट इंटरेक्शन? क्या ऑरा उनका लगा, एंड व्हाट वाज द कॉन्वर्सेशन? इट वाज़ लाइक मैम इनिशियली हमें बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है कि सीनियर से कैसे बात करनी है, कैसे विश करना है उनको, कैसे बातें करनी है, उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करना है। तो देयर वर सम बेसिक रूल्स जिनमें हम इनिशियली गलतियाँ करते थे, तो उन छोटी-छोटी गलतियों के लिए वही हमें रगड़ा देते थे। एक छोटी-सी गलती किसी ने भी की, तो पूरे कोर्स को रगड़ा मिलता था बेसिकली। तो ऐसा होता था कि जैसे किसी ने जय हिंद विश नहीं किया, बेसिकली अभी आदत नहीं रहती, हम सिविल लाइफ से आए हैं अकेडमी के अंदर, तो समटाइम्स विल मिस कि जय हिंद, या फिर बोलना, या फिर कभी हिंदी में बात कर ली, तो यू कांट टॉक टू योर सीनियर्स इन हिंदी। तो वो एक हैबिट होती है बेसिकली टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप बेसिकली बात करना सीखो, यू आर गोइंग टू बिकम अ ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस, तो थोड़ा कम्युनिकेशन आपका बेटर होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए दीज़ आर द बेसिक रूल्स जो बनाए जाते हैं। तो कभी-कभार ऐसा होता था कि हिंदी में कोई वर्ड निकल गया, या फिर कैजुअली कोई चीज़ बोल दी हमने, लाइक यू हैव टू ऑलवेज बीन अटेंशन, सावधान में होना होता है व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर सीनियर। तो इस ओके। टाइप की चीज़ें होती थी कि स्टैंडिंग कैजुअली, या फिर थोड़ा ऐसे लंच करके, तो उस चीज़ों पे भी मतलब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती थी। तो लाइक हैंड जेस्चर्स नहीं कर सकते, लाइक बहुत बेसिक चीज़ होती है। जब कोई सिविलियन जाता है तो उसकी तो आदत होती है, जैसे लाइक अभी आई एम टॉकिंग, अभी मेरा वो निकल चुका वाला फेज़, मेरे को आदत थोड़ी कम होती जा रही है, मैं बाहर रह रहा हूँ। तो लाइक वी हैव द हैबिट ऑफ टॉकिंग विद हैंड जेस्चर्स, तो इस तरीके से बात करने का तो होता था कि एक बार हिंदी में बोल दिया या विश नहीं किया, तो उस चीज़ पे रगड़ा मिलता था। तो इनिशियली जब हमारा इंटरेक्शन हुआ, तो लाइक इनिशियली दे वर लाइक, हमें लगा कि बहुत अच्छे सीनियर्स हैं, उन्होंने थोड़ा मज़ाक-मस्ती किया लाइक टू बिकम फ्रेंडली विद अस, तो हमें लगा नहीं था कि बाद में वो बिल्कुल चेंज होके बिल्कुल ऐसे राम से रावण का रूप ले लेंगे हमारे लिए। इट वाज़ लाइक कि बहुत अच्छे हैं यार, कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। और लाइक इनिशियली उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीनियर्स की, कि आपको छोटी-छोटी चीज़ें सिखाते हैं। लाइक राइट। ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्ट इज़ डिफरेंट, कि जो साहब वगैरह हैं और जो ऑफिसर्स हैं, वो आपको बेसिक चीज़ें सिखा सकते हैं ट्रेनिंग में, कि आपको रनिंग, पीटी कैसे करनी है, ड्रिल कैसे करनी है, स्विमिंग कैसे करनी है, ये चीज़ें सिखा सकते हैं। बट बेसिकली आपको रहना कैसे है, खाना कैसे है, मेस में आप मतलब मोस्टली टाइम यू विल अ, अपने सीनियर्स के साथ ही रहेंगे बेसिकली। होता क्या है, मेस में जा रहे हैं तो उसमें भी अगल-बगल में आपके सीनियर्स बैठे होते हैं। इन कंपनी एरिया, बटालियन एरिया ऑल्सो आपके सीनियर्स आपके साथ रहते हैं। तो यार मल्टीपल इवेंट्स, आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो उसमें भी आपके सीनियर्स आपके साथ रहेंगे। तो वो जो मेन ट्रेनिंग का पार्ट लगता है, मुझे लगता है कि जो अनऑफिशियल पार्ट रहता है ट्रेनिंग का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वहीं से बेसिकली जो मेन चीज़ें होती हैं, लाइक हाउ टू लिव लाइक एन कैडेट, वो अपने सीनियर से हम सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीनियर हर टाइम आपको रगड़ा ही देगा। पहले उनका काम होता है कि वो चीज़ें आपको सिखाना, और वो रगड़ा तभी देगा जब उस सिखाई हुई चीज़ पे आप गलती करोगे। तो गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि एक बार में सिखाई हुई चीज़ वो हमेशा याद नहीं रहती। हम धीरे-धीरे उस चीज़ को गलतियाँ कर कर के फिर सीखते हैं।
बिल्कुल। तो ऐसा होता था कि वो चीजें सिखाते हैं बट उस चीज को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मान लो मैंने फॉलो कर लिया तो मेरा कोई कोर्समेट भूल गया, वो भूला तो भी मुझे रगड़ा मिलने वाला है। तो इट वाज लाइक ओके। वन फॉर ऑल फॉर वन, कोई भी एक गलती करेगा सबको रगड़ा मिलने वाला है, तो इस टाइप की चीजें रहती थी। एंड फर्स्ट इंटरेक्शन वाज लाइक कि बहुत ज्यादा फनी था, उन्होंने हमसे बात किया कि कहाँ से हो आप लोग, सबसे पूछा इंडिविजुअली क्या करते हो, ये करते हो, और इस टाइप की चीजें थी। तो इट वाज फन इनिशियली, बट लेटर ऑन वी रियलाइज्ड कि नहीं, दोस्त तो नहीं है हमारे। तो ठीक यू ऑल्सो हैविंग लाइक अ ओवर स्टडी ऑफ कुछ क्रेडिट्स के, आप ओवर स्टडी भी होंगे। है। तो यस उस टाइम मैम। पे आपकी फीलिंग क्या थी, बिकॉज योर फर्स्ट इंटरेक्शन एंड देन यू बिकम ओवर स्टडी एंड देन उनके साथ बातचीत करना, फिर एक तरह से मुझे लगता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है दैट यू हैव टू यस टेक मैम। केयर ऑफ योर जूनियर्स। सो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो मैम इनिशियली मैं अपने जूनियर फर्स्ट टर्म, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ओटीए, तो वहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। वन टर्म यू आर द जूनियर मोस्ट, देन यू बिकम द सीनियर। तो मैं राइट। जब जूनियर था तो माई और स्टडी वॉज रियली गुड, बट वो मुझे ऐसे फालतू की चीजों पे रखना नहीं देता था। देयर सम सीनियर्स जो ऐसे फालतू में किसी भी गलती हो या ना हो, उसको मतलब दे एंजॉय दैट थिंग कि जूनियर को परेशान करना, होते हैं कुछ लोगों की मेंटेलिटी वहाँ पे। तो आई वाज लाइक, मैंने बहुत चीजें, जब मैं अपने जूनियर टर्म्स में था तो आई मेड माई माइंड कि मैं ये चीजें नहीं करूंगा अपने जूनियर से, या जो मेरा अंडर स्टडी रहेगा। तो मैंने हम्म। ये सारी चीजें डिसाइड कर ली थी कि मैं ऐसे ट्रीट करूंगा उसको, पहले ग्रूम करूंगा, अच्छे से चीजें सिखाऊंगा, हम्म। गलतियां करेगा तो भी मैं ज्यादा फिजिकली उसको इतना राइट। पनिश नहीं करूंगा। बेसिकली आई विल गिव हिम चांस टू इम्प्रूव। मैंने तो बेसिकली अपना माइंडसेट बनाया हुआ था कि मेरा मतलब, होते हैं कुछ लोग कि प्यार से समझाते हैं या फिर कुछ सीधा ही रगड़ा देते हैं। तो आई हम्म। वाज द सीनियर जो मतलब प्यार से समझाने में बिलीव करता था, ओके। कि प्यार से भी समझाया जा सकता है। एंड आई बिकेम अपॉइंटमेंट इन माई सेकेंड टर्म, तो मेरा सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग नहीं था, मेरी पूरी प्लेटून की मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। आई वाज जूनियर अंडर ऑफिसर इन माई सेकेंड टर्म, देन आई बिकेम सीक्यूएमएस, कंपनी कैडेट क्वार्टर मास्टर। सो ओके। बेसिकली इनिशियली व्हेन आई वाज जेयू, तो एक प्लेटून मेरे अंडर थी, उसमें अराउंड 10-12 जूनियर्स होंगे। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बेसिकली जब स्टडी पीरियड चल रहा है या फिर कोई स्पोर्ट्स चल रहा है या फिर उनको कोई दिक्कत फेस हो रही है कि वो घर पे बात नहीं कर पा रहे संडेज को बेसिकली, तो उनकी बात करवाना है। तो आई वाज लाइक फ्रेंडली विद देम। मुझे लगता था कि मुझे जो चीज जूनियर टर्म्स में फील होती थी कि यार ये चीज मिसिंग है, मैं अपने सीनियर के साथ अच्छे से अप्रोच नहीं कर पा रहा। आई फेल्ट कि ये सीनियर शुड बी अप्रोचेबल, जिसके पास जूनियर आए सिर्फ वो रगड़ा देने के लिए नहीं होना चाहिए। बेसिकली यू आर द सीनियर मोस्ट, तो यू शुड बी लाइक कि आपके जूनियर्स आपको अप्रोच करें, एटलीस्ट आपसे आके शेयर करें जो उनको डिफिकल्टीज आ रही है। बिकॉज मैं भी किसी टाइम पे जूनियर था और वो चीजें मुझे फील होती थी कि यार मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज के रिगार्डिंग किसी से, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा है कपड़े धोने का, या फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा अपना रूम मेंटेन करने का, तो कैसे करूं। तो मैं राइट। उस चीज में बहुत वो चीज मिस आउट करता था कि यार मेरे को ऐसे कोई मिल नहीं रहा है जिससे मैं ये चीजें अप्रोच करूँ और उससे बात कर पाऊँ। तो आई वॉज लाइक, मैं सबको बहुत फ्रेंडली मैनर में ट्रीट करता था। एट द सेम टाइम यू नीड दिस स्ट्रिक्टनेस ऑल्सो। तो अगर बिल्कुल ही आप बिल्कुल फ्रैंक हो जाओगे, कैजुअल हो जाओगे उनके साथ, तो दे वॉन्ट फॉलो योर ऑर्डर्स और बहुत कैजुअली लेंगे। तो यू हैव टू मेंटेन अ वेरी थिन लाइन कि आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट भी ना रहो और बहुत ज्यादा कैजुअल भी ना रहो उनके साथ। तो ऐसा होना चाहिए कि व्हेन यू आर सेइंग सम ऑर्डर और ऐसी कोई चीज, तो दे आर फॉलोइंग दैट थिंग। एट द सेम टाइम दे शुड यू शुड बी अप्रोचेबल टू देम, कि वो आपके साथ आके आपकी प्रॉब्लम शेयर करें एटलीस्ट। राइट। सो दैट वाज द थिंग मैम। Yogesh, now you are experiencing the civil world and वहाँ के colleges आप experience कर रहे हो and you have been into the military college यस that मैम। way, and आपने military colleges भी देखे, आपने civilian colleges भी देखे हैं, तो दोनों के अंदर डिसिप्लिन का कैसा डिफरेंस लग रहा है? बिकॉज आई हैव सीन दैट फर्स्ट टर्मर्स को हमेशा भागते रहना होता है, मैंने ऐसे कुछ कुछ चीजें सुनी है, बट यस व्हाट, मैम। टेल मी थ्रू योर एक्सपीरियंस कि किस किस तरह से डिफरेंसेस हैं और कौन सी चीजें हैं जो आपको इनिशियली बहुत अलग लगी थी वहां पे जाने के बाद, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, इन टर्म्स ऑफ डे टू डे लाइफ, मे बी इट कैन बी एन डिफरेंस इन ईटिंग हैबिट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। यस मैम। सो टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक्स फर्स्ट, लाइक पढ़ाई के बेसिस में अगर हम कंपैरिजन करें, इन सिविल लाइफ यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। लाइक आप चाहो तो पढ़ लो या नहीं चाहो तो अपनी मर्जी के हिसाब से यू कैन डू थिंग्स, जैसा भी आपका कॉलेज शेड्यूल है या फिर जैसे यू कैन मैनेज द थिंग्स। बट टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री स्टडीज, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि लाइक अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं चलता है। अब होता ये था कि एक और चीज मैंने डिफरेंस की, मे बी सिविल में लोग पढ़ते होंगे लेकिन फिर गुड गुड कॉलेज वहाँ पे अटेंडेंस वगैरह है और अच्छे टीचर्स हैं, तो स्टडिंग रेगुलरली, आप क्लासेस ले रहे होगे, अच्छी चीजें नॉलेज गैदर कर रहे होगे। बट टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री, उस टाइम पे तो क्लासेस में क्या होता था कि टीचर्स बहुत अच्छे थे, सिविल टीचर्स थे, बहुत हाईली प्रोफेशनल टीचर्स थे। एंड वी यूज टू स्लीप। तो मेरे को ये एक फॉल्ट लगता था कि हम क्लासेस में वी यूज टू स्लीप, हमें रात भर और दिन भर इतना फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते थे कि क्लासेस में जगह ही नहीं जाता था लिटरली। मतलब व्हेन एक हैबिट बन चुकी थी, हम क्लासेस में गए तो इट वाज आवर स्लीपिंग टाइम इनिशियली।
Okay. जूनियर टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो जूनियर टर्म्स में इट्स वेरी हेक्टिक टू लाइक बी अवेक इन द क्लासेस, और क्लासेस रेगुलरली लेना नहीं हो पाएगा आपसे। तो वो भी एक फेज था, बट व्हेन यू बिकम सीनियर तो आपको पता चलता है कि पढ़ाई की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आपको पढ़ना चाहिए। एंड एट दैट टाइम वो फिजिकल एग्जॉशन भी कम होता जाता है विद सीनियर, एट द टाइम यू सीनियर, जैसे जैसे टर्म्स में जाते हो सीनियर बनते जाते हो, तो वो Right. फिजिकल वाला पार्ट कम होता जाता है, एंड यू फोकस मोर ऑन द स्टडीज। तो इनिशियली वी यूज्ड टू स्लीप। Mhm. और एक और चीज ऐसी थी कि आप फौज में, ऐसे लोगों को लगता है कि पढ़ाई नहीं होती होगी और इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इट इज नॉट लाइक दैट। पढ़ाई आपको करनी होती है, अगर नहीं करोगे तो जबरदस्ती कराई जाती है आपसे। Okay. बेसिकली एकेडमी में ऐसा होता था कि देयर वर मार्क्स ऑफ एकेडमिक्स ऑल्सो। एकेडमिक्स ट्रॉफी होती थी एक, विच एवर प्लेटून या कंपनी जो भी थी वो अच्छा परफॉर्म करती थी एकेडमिक्स में, उस कंपनी के पर्टिकुलर सीनियर जूनियर सभी के मिला के जो एकेडमिक्स परफॉर्मेंस थी, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट निकलता था लास्ट में। तो आप Mhm. चाह के भी कम मार्क्स नहीं ला सकते। अब जूनियर जो होता था वो हर जगह से फंस जाता था कि मतलब उसको फिजिकल भी अच्छा करना है, भागना भी है, रगड़ा भी खाना है, दिन भर जगना भी है रात को। एंड Mhm. एकेडमिक्स में बात करें तो देर वॉज अ मिनिमम क्राइटेरिया सेट बाई दी सीनियर्स कि तुम्हारा अगर 100 नंबर का पेपर है तो 50 से कम कोई भी नहीं लेके आएगा। भले ही एकेडमी के पासिंग मार्क्स 33% ही हो, बट देर वॉज रूल सेट बाई दी सीनियर्स। तो उसका इतना डर रहता था ना कि मतलब मान लो गलती से मैं अगर 50 से कम ले आया तो मतलब बिल्कुल मार देंगे सीनियर्स, इस तरीके का खौफ रहता था। तो मतलब लोग चाह के भी अ, उस चीज को नहीं नेग्लेक्ट कर पाते थे। और ड्यूरिंग दी एग्जाम टाइम्स भले आप क्लासेस में सो रहे हो, आपने पढ़ाई नहीं की हो, बट आपको बहुत अच्छे से उस टाइम पे एग्जाम्स के टाइम पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता था पढ़ने के लिए। लाइक Mhm. बिफोर एग्जाम्स डे और 2 डे बिहाइंड, तो उसमें क्या होता था बेसिकली स्टडी पीरियड्स आपके लिए अलॉटेड होते थे कि उस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज पीटी वगैरह वो सब हटा दी जाती थी, सिर्फ स्टडी पीरियड्स होते थे दिन भर। तो Okay. उसमें क्या होता था कि जबरदस्ती बिठा के आपको सीनियर्स पढ़ाते थे, कि एक Mhm. सीनियर बैठ गया, उसके चारों तरफ उसने 4 जूनियर्स को बिठा लिया, स्टडी टेबल और चेयर लगा के, और वहां बैठ के पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसके बगल में। उधर भी नींद आएगी क्योंकि आपको हैबिट बन चुकी है पूरे टर्म में क्लासेस में सोने की, और पढ़ाई तो आपने बिल्कुल की ही नहीं है, तो उस टाइम पे भी बिल्कुल सो रहे होते थे। जैसे ही सोते थे तो कहीं तो कुछ ना कुछ रगड़ा देते थे। तो बेसिकली मेरे एक सीनियर थे, मतलब उन्होंने ऐसा रूल बनाया होता कि जो भी जिसको भी नींद आती थी ना, उसको ऐसे, देर इज अ टर्म ही यूज टू से गेट वेट। तो हम जैसे जाते थे बाथरूम में, पूरा ऊपर से नीचे जो भी हमने यूनिफॉर्म पहनी होती थी उसमें पूरा गीला होके आ जाते थे, और पानी बिल्कुल ऐसे बोलते थे कि ड्रेंचिंग वेट होना चाहिए बिल्कुल, तो पानी टपकता हुआ दिखना चाहिए, पूरे गीले होके आए और उसमें बैठे। और कई कई बार इतनी ज्यादा नींद होती थी कि लोग गीले हो रखे फिर भी सो रहे हैं, मतलब तो इस लेवल की फिजिकल एग्जॉशन होती है वहां पे। बट पढ़ाई के टाइम पे दे यूज टू गाइड यू कि ये चीजें पढ़नी चाहिए, हमने हमारे टाइम पे ये चीजें पढ़ी थी, इस बुक से ये पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये सारी Definitely. चीजें भी आपको गाइड करते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम्स, क्योंकि उन्हें पता है कि एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना भी मैटर करता है, वहां पे आपका सीजीपीए चलता है। तो द Mhm. मोर बेटर सीजीपीए विल गेट, तो आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए वो चीजें भी अच्छे हैं। जैसे वंस यू हैव कंप्लीटेड योर बीटेक, जैसे आप कमीशन हो जाओगे, आपको आगे जाके एमटेक वगैरह करनी होगी आर्मी के अंदर, तो Mhm. दोज थिंग्स विल मैटर कि आपके बीटेक में कितना स्कोर था। तो उन Right. चीजों को ध्यान में रखते हुए वो आपकी पढ़ाई को बिल्कुल खराब नहीं करते हैं, उस चीज पे भी फोकस करवाते हैं आपसे। Good. Yogesh, everybody is very much curious regarding the routine, especially on the weekends and the weekdays. So दोनों के टाइम पे routine कैसे रहता था? How do you used to manage your sleep schedules, academics, PT drills और बाकी सब चीजों के लिए, and especially making time for your family. So what your routine used to be? Please tell me about that. So when talking about the routine, it started from our morning muster, जो सुबह 4:30, अराउंड 4:30 वी यूज टू वेक Mhm. अप। ऑफिशियली आई एम टेलिंग, अनऑफिशियली तो बहुत कुछ चीजें चलती हैं, डिपेंड्स कि कैसा माहौल है और क्या इवेंट चल रहा है उस टाइम पे। But it must be ऑफिशियली very विल tough टॉक। waking up every single day on the same time. I mean, for यस a मैम। very young cadet, I'm sure it must be very tough. इनिशियली इट वाज लाइक, मैं तो जब मैंने यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी एंड ऑल, मेरी हैबिट थी कि मैं रात को पढ़ता था और दिन में लेट उठता था, अराउंड 8-9, तो मेरी वैसी हैबिट बन गई थी। मैं एकेडमी गया तो मेरे को बहुत इनिशियली बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस हुई कि मेरे से उठने में। तो मैंने अपने बडी सिस्टम होता है बेसिकली, तो मेरा जो बडी था वो सुबह जल्दी उठ जाता था, तो मैं उसको बोलता था कि यार जैसे ही तू उठे मेरे को भी उठा देना। तो ऐसे हमने बनाया हुआ था, तो दैट वाज मैनेज। बट विद टाइम फिर आपको हैबिट हो जाती है, फिर मेरे को ऐसा हो गया था कि सुबह अपने आप ही आंख खुल जाती थी मेरी, तो वो चीज हैबिट हो जाती है। तो स्टार्टिंग विद द मॉर्निंग मस्टर, सुबह उठते हो आप अपना शेविंग वगैरह करते हो, एंड यू गो फॉर द मॉर्निंग मस्टर। जो भी आपकी ओडीटी रहती है, बेसिकली ओडीटी इज आउटडोर ट्रेनिंग, तो उसमें आपका ड्रिल हो सकती है, पीटी हो सकती है, हॉर्स राइडिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, फिर और कोई भी इवेंट, फायरिंग हो गया, या फिर कोई भी बेसिक जो भी उस टाइम पे इवेंट चल रहा था उसके अकॉर्डिंग। तो आप सुबह मॉर्निंग मस्टर में जाते हो, वहाँ पे एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर आते हैं, वो काउंट डाउन लेते हैं, और सुबह मॉर्निंग मस्टर में आपका ओटीए प्रेयर होती थी एकेडमी के अंदर, एकेडमी प्रेयर हो गई,
और इस टाइप की चीजें बेसिकली कराई जाती थी सुबह, मतलब थोड़े बहुत स्लोगन्स वगैरह लगाना जस्ट टू मोटिवेट द कैडेट्स ऑन द बिगिनिंग ऑफ द डे। तो वो होता था वहीं से, फ्रॉम दी मस्टर टू डायरेक्टली गो टू योर ओडीटीज, जो भी रिस्पेक्टिव आपकी ओडीटीज रहती थी, कि किसी कोर्स का कुछ हो रहा है, किसी कोर्स का कुछ हो रहा है, सबका सेम नहीं रहता। सो Right. डिफरेंट एक्टिविटीज रहती हैं, उस टाइम पे आप चले जाते हो। अराउंड 6 to 7:15 आपकी ओडीटी रहती है, आउटडोर ट्रेनिंग रहती है। वंस यू आर डन विद योर ओडीटी, यू केम बैक टू योर केबिन्स, केबिन्स में आते हो, आप चेंज करते हो, और फिर आपका मेस टाइमिंग्स रहता है टिल 8। वैसे 8:30 रहता है ऑफिशियली, बट 8:30 पे आपको क्लासरूम के अंदर बैठना होता है। तो मेस टाइमिंग्स वाज आल्सो वेरी डिफरेंट फॉर एवरीवन। लाइक जो टोटल 6 टर्म्स होते हैं एकेडमी के अंदर, आई एम Mm-hmm. टॉकिंग अबाउट दी CTWs, तो वहाँ पे 6 टर्म्स रहते हैं बेसिकली। तो 6 टर्म्स में ऐसा रहता था कि फर्स्ट टर्मर्स का टाइम रहता था कि 7:40 मान लो, फिर पाँच Mm-hmm. पाँच मिनट का गैप बढ़ता रहता था मेस के अंदर, कि उसके बाद कोई भी उस टर्म का कैडेट आपको दिखना नहीं चाहिए। तो इट Okay. वाज वेरी डिफिकल्ट इन जूनियर टर्म्स में। तो उसमें मैं लाइक, आई ऑल्सो यूज टू सी, कि मैं बहुत रेयरली ब्रेकफास्ट कर पाता था उस टाइम पे, बहुत मुश्किल रहता था जूनियर टर्म्स में। आई थिंक दैट इज रियली गुड ऑल्सो, क्योंकि एक ट्रेनिंग जो है, अगर आप स्टार्टिंग से आपको बोल दिया जाएगा कि 8 बजे तक खाना खाना है आपको, तो आपकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा बोरिंग और कांस्टेंट हो जाएगी, मुझे लगता है कुछ Mm-hmm. थ्रिल बचेगा नहीं एकेडमी में। तो व्हेन यू गेट दी प्रिविलेजेस, हर टर्म में जब 5-5 मिनट आपके बढ़ते हैं ना, कि हाँ 5 मिनट और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 5 मिनट ऐसे लगते हैं कि यार पता नहीं क्या ही है। और वो जल्दी खाने की हैबिट बेसिकली, तो वो सारी चीजें एक स्ट्रक्चर और तरीके से सोच के बनाई गई है। और Right. लोग ऐसे बोलते हैं कि खाना नहीं मिलेगा तो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो आज Mm-hmm. तक हजारों लोग और हजारों ऑफिसर्स बन चुके हैं कैडेट्स, तो मुझे नहीं लगा कि कोई खाने की वजह से मरा हुआ एकेडमी के अंदर। तो वो Right. सारी हैबिट्स इनिशियल बेसिक से एडवांस तक जब आप जाते हो सीनियर टर्म्स पे, तो आपको एंजॉयमेंट भी फील होती है कि हाँ यार, छोटी छोटे प्रिविलेजेस जब मिलते हैं हर चीज के अंदर, तो बहुत Mm-hmm. अच्छा फील होता है। तो ड्यूरिंग माय जूनियर टर्म्स में आई यूज्ड टू राइट डायरी एकेडमी में। तो मेरी हैबिट थी कि मैं डायरी लिख लेता था एकेडमिक्स में, सोने से पहले 5 मिनट जग के पहले अपना लिखता था, फिर सोता। तो Mm-hmm. मैंने आके जब काउंट किया ड्यूरिंग माय फर्स्ट टर्म, वन टर्म इज ऑफ 154 days, 22 वीक्स की ट्रेनिंग होती है एक टर्म के अंदर। तो आई काउंटेड एंड आई गोट टू नो दैट आई एट ब्रेकफास्ट ओनली फॉर 18 days इन माय फर्स्ट टर्म। बट जैसे जैसे मैं सीनियर टर्म्स में गया, तो वो चीज बढ़ती गई। तो Mm-hmm. ऐसा होता है। एट द सेम टाइम जब आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, तो आप बाकी जगह से उन चीजों को कैटर कर लेते हो, कहीं ना कहीं से आपने लड्डू वगैरह छुपा के रखे होते हैं, या फिर ऐसे कुछ खाने पीने का रखा ही होता है, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो वंस यू आर डन विद योर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद आप एकेडमिक्स क्लासेस में जाते हो 8:30। एट Okay. थर्टी आप एकेडमिक्स क्लासेस जाते हो, और आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है फ्रॉम 8:30 to 2 PM। 2 बजे तक क्लासेस चलती है। इन बिटवीन देर आर गैप्स ऑफ 5-5 मिनट्स इन ईच लेक्चर। और अराउंड 10:40 से 11 बजे तक आपका टी ब्रेक होता है। तो Mm-hmm. टी ब्रेक में भी देर इज ऑल्सो प्रिवलेज सिस्टम, कि जूनियर्स नहीं ले सकते, सीनियर्स खा सकते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो दीज आर द थिंग्स। तो मतलब एक देखा जाए, जूनियर को खाना नहीं मिलता, बट फिर भी वो सर्वाइव कर रहा होता है। तो इट इज अ Mm-hmm. वेरी बिग थिंग। और उल्टा सबसे ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टेड सबसे जूनियर मोस्ट ही होता है वहाँ पे एकेडमी में, और उसे ही Right. सबसे कम खाना मिल रहा होता है देखा जाए तो। बट Mm-hmm. दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, कि मिनिमम में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो इन दी हार्श सिचुएशंस, आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो एकेडमी के अंदर। सो Right. दोज आर द थिंग्स दैट आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। और जो बीच में टी ब्रेक रहता है, उसमें जो सीनियर्स रहते हैं वो टी ब्रेक लेते हैं। आई यूज टू सी लाइक टी ब्रेक के टाइम पे दे यूज टू कम इन आवर क्लासेस, और क्लासेस में आके हमें रगड़ा वगैरह दे रहे हैं, और उनके हाथ में मैं देखता था कि जैसे कोल्ड कॉफी है या फिर कुछ है, तो हम ऐसे देख रहे होते थे। मन ही मन में उनको अंदर से ऐसे कस भी कर रहे होते थे कि यार ये खा रहे हैं और देखो हमें रगड़ा दे रहे हैं इस तरीके से। बट वो चीज फिर धीरे धीरे जैसे हम सीनियर बने, तो वो फील हुई, मतलब बेसिकली कि अगर वही पार्ट ऐसा होता कि मैं फर्स्ट टर्म से अपने टी ब्रेक खा रहा होता, तो मुझे कुछ डिफरेंस ही फील नहीं होता। मे बी Mm-hmm. ट्रेनिंग वुड हैव बिकम बोरिंग फॉर मी, मैं बोर हो जाता कि यार वही सेम चीजें कर रहा हूँ 3 साल से। तो Right. दीज आर द थिंग्स जो लाइक थोड़ा Different. क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पार्ट। तो Right. आफ्टर दी टी ब्रेक आपकी क्लासेस होती है 2 बजे, आपकी जैसे ही क्लासेस ओवर होती है डायरेक्टली गो टू दी मेस, वहीं से क्लासेस से सीधा Mm-hmm. जूनियर्स भाग के जाते हैं, उससे थोड़े सीनियर्स है वो थोड़ा स्लो जॉग करके जाते हैं। और जैसे जैसे, और इसमें भी जैसे हर छोटी छोटी चीज में हम देखेंगे ना, कोई भी छोटी चीज बेसिकली, मेस प्रिविलेजेस हो गए, आने जाने का, चलने का तरीका हो गया, कपड़े पहनने का तरीका हो गया, या फिर कोई भी पार्ट है, शू लेसेस बांधने, जूते कैसे बांधने, लाइक छोटी से छोटी चीज है, उसका भी एक प्रिविलेज है। कि फर्स्ट टर्मर है, वो नीचे बैठ के शू लेसेस नहीं बांध सकता अपने रूम के अंदर भी, उसको हमेशा खड़े रह के अपना पैर घुटना जो फोल्ड करके ऊपर करके ही बांधना है उसको। तो उस तरीके से, तो दीज आर दी थिंग्स, मतलब बहुत छोटे छोटे प्रिविलेजेस है, मतलब हर एक छोटी चीज के। Mm-hmm. तो मतलब ऐसा होता था कि जब आप मेस में जा रहे हो एकेडमिक्स क्लासेस से, तो सबसे जूनियर मोस्ट जो रहता था, ये यूज्ड टू स्प्रिंट लाइक बहुत तेज, ऐसे दिखते ही नहीं थे, गोली की रफ्तार से भागते थे बिल्कुल। तो सेकंड टर्मर्स रहते थे उनसे स्लो, जस्ट टू फील द डिफरेंस कि हाँ हम उनसे सीनियर हैं,
और थोड़ा सा डिफरेंस फील करने के लिए कि आपको अच्छा फील होता है कि यार मुझसे तेज कोई भाग रहा है, तो मतलब मैं सीनियर मोस्ट हूँ, तो थोड़ा आपको उस टाइम पे हैप्पीनेस होती है कि मैंने कुछ तो अचीव किया, मैंने एक टर्म निकाल लिया एकेडमी के अंदर। और आपसे जो सीनियर मोस्ट होगा वो थोड़ा और धीरे चलेगा, और आपसे जो फोर्थ टर्मर होगा वो बिल्कुल डेड वॉक करता है कि बस जस्ट टू शोइंग द एक्शन, और फिफ्थ सिक्स टर्म में यू कैन जस्ट वॉक। सिक्स टर्मर्स कैन वॉक रैंडमली, बट जो फिफ्थ टर्म तक रहता है आपको स्क्वाड्स में ही चलना पड़ेगा बेसिकली। चार चार का फॉर्मेशन होता है, दो लोग आगे दो लोग पीछे, उसी फॉर्मेट में आप जो बाइसाइकिल्स होती हैं उसमें भी वैसे ही जाते हो, मैस जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो तो आप एक बेसिकली फॉर्मेशन में जाते हो। तो चार का स्क्वाड मिनिमम रिक्वायर्ड होता है आपको कहीं भी मूवमेंट करने के लिए, तो चार लोगों के साथ ही आप मूव कर सकते हो इधर उधर। तो दीज आर द प्रिविलेजेस भागने वाले जो हैं। फिर आप मेस में जाते हो तो मेस में भी देर आर मल्टीपल प्रिविलेजेस, छोटी छोटी चीज के प्रिविलेज हैं कि जूनियर टर्म्स हैं तो सॉस नहीं खा सकते, बटर नहीं ले सकते, और इस टाइप की चीजें रहती है। और बेसिकली इसके पीछे भी मुझे बहुत सारे रीजंस लगते थे कि हम जूनियर टर्म्स में जब जाते हैं, सिविल लाइफ से कैडेट बनते हैं, तो हम बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। एट दैट टाइम वी हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन टाइम्स। तो द मेन फोकस इज टू गेट आवर बॉडी शेप्ड उस टाइम पे, और फिजिकली उस चीज के रूटीन में बेसिकली लेके आने के लिए कि हम थोड़ा वेट लॉस करें। तो वो मुझे सही लगा कि हाँ ठीक है, इफ वी आर अवॉइडिंग दोज थिंग्स, वो कुछ हेल्दी तो है नहीं कि अगर एकेडमी में हमें खाना मिल रहा है जैम, तो वो कुछ अलग तो मिलेगा नहीं, उसमें भी शुगर वगैरह वही चीज़ है, अगर हम बटर खा रहे हैं वो भी इतना हेल्दी है नहीं। तो द मेन फोकस ऑफ सीनियर्स वुड कि आप जैम भी नहीं खा सकते, सॉस भी नहीं खा सकते, बटर भी नहीं खा सकते, और खाने का तरीका भी अलग था। तब मेन फोकस वुड कि राइस और ये सब खाना है आपको। तो खाने का तरीका भी था कि सीनियर सीनियर मोस्ट जो रहते थे वो हाथ से ही चपाती को खा रहे हैं, लाइक जब ऑफिसर्स नहीं रहते थे मेस के अंदर बेसिकली। Okay. और जो जूनियर्स रहता था उनका तरीका था कि रोटी को यू हैव टू रोल इट, और फिर उसको एक बाइट लेनी है, फिर दाल खानी है, जब तक दाल नहीं खा लेते जब तक यू कांट च्यू द बाइट जो आपके मुंह के अंदर है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रिविलेज रहते हैं। अगर ब्रेड खा रहे हो तो सीनियर तो कैसे भी खा सकता है, उसको ब्रेड उठा के दो, उसके ऊपर बटर लगा लिया, जैम लगा लिया, कैन जस्ट पुट टू ब्रेड्स और उसको सैंडविच की तरह खा सकता है। बट जूनियर के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ईट दी ब्रेड। मुझे याद है कि फोक और उससे खाते थे हम, नाइफ से। एंड इन फर्स्ट टर्म वी हैव टू कट द ब्रेड इनटू फोर पार्ट्स, उसको फोर पार्ट्स में कट करके देन वी हैव टू ईट ईच पार्ट इंडिविजुअली। और ऐसे बहुत सारे प्रिविलेज रहते थे कि जैसे आपको दूध पीना है, जूनियर टर्म्स में मिल्क रहता था सुबह सुबह, बहुत गर्म रहता था, और इस चीज के लिए मेस स्टाफ जो रहता था उनको बोलते थे कि भैया थोड़ा ठंडा रख लिया करो। तो रूल वॉज कि आपको एक गल्प में पूरा ग्लास खत्म करना होता है इन जूनियर टर्म्स, यू कांट टेक सिप। तो वो प्रिविलेज होता है सीनियर्स का कि सिप सिप करके दूध पीना। और जूनियर टर्म से मुझे याद है कि ऐसे बिल्कुल कभी कभी तो बहुत गर्म दूध रहता था, और कोई सीनियर बगल में बैठा हुआ है, अब उसके सामने आप चटकी मार के तो पी नहीं सकते। अगर कोई सीनियर नहीं होता तो चुपचाप आप धीरे धीरे करके बिना देखे, कोई देख नहीं रहा तो पी लो उस चीज को। बट सीनियर बगल में बैठा तो आपको एक सिप में ही खत्म करना पड़ेगा। तो मुझे याद है कि बिल्कुल ऐसे गरम गरम दूध भी पिया हुआ और जीभ जल जाते थे बिल्कुल। अरे। और ऐसे कुछ थोड़ा एक्सक्यूज दे दिया ना, फिर कुछ भी ऐसे कर दिया सीनियर ने, वो चीज पॉइंट आउट कर ली कि अच्छा ये तो प्रिविलेजेस ब्रेक कर रहा है, और प्रिविलेज काम कर रहा है। तो वो आसपास बगल वाले जो दूध होते थे, तो मेरे को याद है कि मैंने एक बार 7 8 10 ग्लास दूध भी पिए हुए हैं एक बार में, वो भी गरम गरम बिल्कुल ऐसे करके। तो दोज वर दी थिंग्स। फिर गलती मैंने कभी की नहीं, मैंने देखा कि कोई देखे ना देखे मुझे, मैं कभी सिप सिप करके दूध नहीं पीऊंगा जब तक मेरा वो प्रिविलेज नहीं बन जाता है। तो दीज आर द थिंग्स कि आप चाह के भी वो मन में आपके थॉट आए ना कि मैं गलती कर दूं, इस तरीके से आपको वो रगड़ा देते हैं। Okay. और ऐसी चीजें रहती हैं। मेस प्रिविलेजेस हो गए, वंस यू आर डन विद योर लंच, आप लंच के बाद अपने रूम में जाते हो, यू विल गेट हाफ एन आवर टू रिलैक्स, जो भी आपको अपना काम करना है वो कर लो। देन अराउंड 3 बजे के आसपास आपकी फिर से इवनिंग ओडीटी होती है। Okay. इवनिंग पीटी हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, मे बी जो अदर एक्टिविटीज है, कभी कभी क्लब्स हो जाते हैं, तो इस टाइप की चीजें आपकी होती रहती है। तो उधर आप जाते हो 3 बजे, 3 से 4 या 4:30 बजे तक आपकी वो सारी चीजें चलती है, पीटी हो गया, ये सब हो गया। देन फ्रॉम 5 हाफ एन आवर का आपको गैप मिलता है, 5 to 7 या 7:30 तक आपके गेम्स चलते हैं। और गेम्स डिपेंड ऑन द इवेंट्स, देयर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन एकेडमी कि आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिलता है। एंड Okay. स्पेसिफिकली इन टीएस एंट्री बहुत लिमिटेड लोग रहते हैं, 90 वैकेंसीज हैं, और उन 90 को भी डिवाइड करें तो 3 CTWs हैं, तीनों में 30 30 लोग चले गए। और उन 30 को भी अगर हम फिर एकेडमी में डिवाइड करें तो 5 6 प्लेटून्स होती हैं, उसमें भी 4 4 5 5 लोग एक कोर्स के जा रहे हैं। तो बहुत लिमिटेड जूनियर्स होते हैं एक प्लेटून के अंदर। एंड दैट्स व्हाई आई से कि मतलब एक और ये डिफरेंस है एनडीए और टीएस के अंदर कि एनडीए में देयर इज लॉट ऑफ क्राउड, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जहाँ 2000 लोग हैं, वहीं व्हेन यू विल गो इन टीएस एंट्री वहाँ पे हार्डली 200 250 लोग मिलेंगे आपको कैबिनेट के अंदर। और सबकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, मतलब आपके फैमिली से लेके आपके एक एक चीज के बारे में वो जानता होगा कि आपने किस टाइम पे कौन सी गलती करी थी, वो भी याद रखेगी कि अच्छा तूने ये गलती उस टाइम पे करी हुई है। या बंदा मतलब बहुत इजीली कोई इंसान हाईलाइट हो सकता है वहाँ पे। तो ट्रेनिंग इज वेरी डिफिकल्ट, और आप गलतियों को छुपा नहीं सकते वहाँ पे कि भीड़ में आप निकल गए, तो आपको हर एक इंसान आपकी हर एक छोटी छोटी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है, इसने ये गलती करी है। तो दैट इज द डिफरेंस। और ये तो हो गया कि सिर्फ रगड़े वाली बात। इसका अगर हम पॉजिटिव साइड देखें, द थिंग इज कि
वहीं आपको एक एकेडमी है जहाँ पे आप 200 लोग हैं और उसपे एक इंस्ट्रक्टर है, वो आपको चीजें सिखा रहा है। तो आपको फुटबॉल खेलना है मान लो, तो फुटबॉल में 2 या 3 टीम बन गई, तो हम 11-11 की 3 टीम भी बना ले तो 33 पीपल विल पार्टिसिपेट एट वंस इन वन इवेंट। बट इन ये सेंट्री वही लिमिटेड लोग हैं, वही 15-20 लोग हैं एक प्लेटून के अंदर, बट पार्टिसिपेट सबको करना है, 2 टीम बनानी है। तो आपको आता है और नहीं आता हो, आपको चीज सीखनी पड़ेगी और आपको पार्टिसिपेट करनी पड़ेगी। तो आप ना चाह के भी चीजें सीखना पड़ती हैं आपको वहाँ पे। तो ये मेरे को एक बेटर पार्ट लगता है टीएसएट्री का, कि जितने भी कैडेट्स होते हैं दे डूइंग रियली गुड इन ऑल द इवेंट्स। कि डिबेट हो तो डिबेट में देर लिमिटेड पीपल, सबको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। क्विज हो उसमें पार्टिसिपेट करना है। अब सबका नॉलेज इतना अच्छा नहीं होता है, बट वो इवेंट आ रहा होता है तो आपको डर होता है कि यार मैं हार ना जाऊं या मेरी प्लेटून हार ना जाए, तो उसके लिए आप मेहनत करते हो और उस चीज को सीख लेते हो। मान लो टेनिस आ रहा है, अब टेनिस में देर लिमिटेड पीपल, पर आपको खेलना पड़ेगा आपकी प्लेटून से किसी को। और देर इज अ स्पेसिफिक रूल कि हर एक कोर्स से एक कैडेट खेलेगा। तो आप हो सकता है आपके कोर्स में किसी को नहीं आता हो, तो उसमें आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। फुटबॉल के लिए तो फुटबॉल आपको खेलना नहीं है, आपका गेम नहीं है, बट आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि टीम बनानी पड़ेगी उतने लोगों की। तो मिनिमम आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो वहां से चीजें बहुत अच्छे से सीख पाते हैं लोग। स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो जो कंपलसरी स्पोर्ट्स रहते हैं बेसिकली फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये तो आप सब खेलते ही हो। उसके साथ में व्हेन आई वाज इन सीयूएमई तो देयर वर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज की जो अदर चीजें, अदर एक्टिविटीज जो मैंने सीखी। और मे बी मैं सिविल लाइफ में रहता तो मैं कभी एक्सपोजर मिलता ही नहीं मेरे को। तो दैट वाज वन ऑफ द गुड पार्ट की जैसे मैंने स्क्वॉश सीखा, मैंने टेनिस सीखा, उसके बाद Wow. मैंने गोल्फ सीखा है, हॉर्स राइडिंग सीखी है, मैंने सेलिंग सीखी है, रोइंग सीखी है। देयर वाज रोइंग चैनल इन सीएमई, वहाँ पे खुद के लेक्स भी हैं सीएमई के अंदर। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सीएमई अगर आप जाओगे कभी तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल, नॉट जस्ट लाइक सीटीडब्ल्यू है, वो एक पार्ट है सीएमई का। अदर ऑफिसर्स ऑल्सो गो इन सीएमई फॉर देयर अदर कोर्सेज वगैरह के लिए। और जो भी लोग जैसे एनडीए वगैरह से इंजीनियर्स वगैरह में आते हैं, दे ऑल्सो कम टू सीएमई फॉर देयर बीटेक एंड ऑल, उस सब चीजों के लिए। तो ये सारी चीजें मैंने सीखी, गोल्फ हो गया, अदर एक्टिविटीज ऑल्सो लाइक आई डोंट यूज टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट एंड क्विज, तो वो भी मैंने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे। तो पब्लिक स्पीकिंग हो गया, तो आई वाज लाइक इनिशियली मैं वो चीज नहीं बोल पा रहा था कि गलतियां कर रहा था, बट विद टाइम फिर मेरे को ऐसे लगा कि मैंने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया उन एस्पेक्ट्स में। सो Okay. दैट वाज द थिंग। और जैसे आपका गेम्स हो जाता है, गेम्स के बाद में यू केम बैक और आप चेंज वेंज करते हो, नहाते धोते हो, उसके बाद में देन योर स्टडी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 6:30 to 8। जैसे आपका गेम्स खत्म होता है उसके बाद जस्ट बाद में हाफ एन आवर मिलता है आपको। फिर आपका 1-1.5 घंटे का स्टडी पीरियड होता है, जिसमें स्टडी पीरियड में बेसिकली आपको अपने कैबिन्स में स्टडी टेबल पे बैठना होता है, प्रॉपर रूम अरेंज करके। ऑफिसर्स कम ऑन राउंड कि वो देखते हैं सभी कैडेट्स पढ़ रहे हैं नहीं होते। जो ड्यूटी ऑफिसर रहता है उस दिन का, वो राउंड पे आता है हर एक प्लेटून में, देखता है कि कैडेट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो जूनियर टर्म्स में भी ऐसा होता था कि चाके उसमें नींद आएगी, फिर से वही होता था कि नींद आ रही है, स्टडी टेबल पे सो रहे हैं। और किसी टाइम पे पकड़े जाते तो सीनियर बुला के फिर पूरे टाइम रगड़ा देता था उस टाइम पे भी। तो वो एक टाइम पीरियड मिलता है आपको पढ़ने का बेसिकली। और ओटीए में जैसे थिन क्लाइंट वगैरह रहते हैं, तो आपके पास जो भी बुक मॉड्यूल्स वगैरह रहती हैं उसमें भी आप पढ़ सकते हो। थिन क्लाइंट में भी चीजें रहती हैं, डेली न्यूज़पेपर आता है, वो चीजें भी पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ना भी इज अ प्रिविलेज। इनिशियली आपको नॉवेल्स हो गई, नॉवेल्स पढ़ना भी प्रिविलेज नहीं होता, क्योंकि अगर सीनियर्स की ये थिंकिंग थी, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, कि उनका ऐसा मानना था कि किसी जूनियर को अगर नॉवल पढ़ने का टाइम मिल रहा है या फिर न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम मिल रहा है, उसकी ट्रेनिंग हो ही नहीं रही है। मतलब उसको कहीं ना कहीं तो कोई चीज मिसिंग आउट है, कि मतलब अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और नॉवेल्स पढ़ रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, मतलब उसकी ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। तो वो ऐसा एक प्रिविलेज ही बना दिया बेसिकली। तो चाह के भी हम पढ़ नहीं पाते थे, वो बेसिकली कोई नहीं पढ़ता था। बाद में रेयर ऐसा होता था कि सीनियर टर्म्स में आप जाके बुक रीडिंग वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, ये सब चीजें पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है उस टाइम पे। आपके ऊपर कोई होता नहीं है पनिशमेंट वगैरह देने के लिए आपको, यू आर द सीनियर मोस्ट। तो आप चाहो वो करो, बहुत ज्यादा फ्री टाइम होता है अदर देन दी रगड़ा वाला पार्ट अगर हम हटा दे तो। Right. तो जैसे ही आपका स्टडी पीरियड कंप्लीट होता है, स्टडी पीरियड में यू हैव टू सिट इन फॉर्मल्स, जो मुफ्ती होती है उसके अंदर आप बैठते हो। और स्टडी पीरियड जैसे आपका कंप्लीट होता है, यू डायरेक्टली गो टू दी मेस। वहां से Okay. मेस में सभी जाते हैं सेम फॉर्मेशन में, स्क्वाड्स बना के, भाग के। सीनियर्स हैं वो चल के जा रहे हैं, यू रीच एट दी मेस। वहाँ पे फॉल इन होता है, और जो भी रात को ड्यूटी ऑफिसर रहता है वो मेस में आता है, एंड ही टेक्स द फॉल इन। और फिर वो देखता है कि हाँ सभी लोग पूरे हैं, काउंट अप है, सभी लोग ओके हैं, वी गो इनसाइड द मेस। अब रात को क्या होता है कि ड्यूटी ऑफिसर आया होता है साथ में मेस के अंदर। तो अब आपको सीनियर जो है रगड़ा वगैरह नहीं दे सकते मेस के अंदर, कुछ उल्टे सीधे काम नहीं करवा सकते आपसे। तो उस टाइम पे आपको खाना प्रॉपरली मिल जाता है। तो रात को जो होता था ना, बेस्ट टाइम, रात को हम बहुत दबा के खाते थे कि ऐसे कि जल्दी जल्दी खा लो कितना भी। बट एक और इशू रहता था कि आपको बहुत प्रॉपर मेस एटिकेट्स होते हैं, प्रॉपरली फॉलो करने होते हैं, कि आप चम्मच की आवाज में, कटलरी की आवाज नहीं कर सकते। अगर वो थोड़ा भी ऐसा हुआ और ऑफिसर को फील हुआ,
तो वो भी सेम एंट्री और सेम ट्रेनिंग करके गए हुए हैं, तो वो अपने हमारे सीनियर्स को रगड़ा देंगे कि तुम्हारे जूनियर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनको एटिक मैथ राइट। एटिकेट नहीं आते, और फिर सीनियर वो लोड हम पे ट्रांसफर करेंगे। तो हम्म। ऐसा होता था। और डिनर में क्योंकि वो उल्टी सीधी चीजें जैसे मैं बोल रहा था वो उससे नहीं करा सकते, उससे क्या मतलब था बेसिकली, जैसे मैं ओटीए में था, तो हम्म। सीनियर्स को परेशान, लाइक फिजिकली मेस के अंदर फिजिकली आपसे कुछ भी नहीं करवा सकते हो। लाइक मेस स्टैंड्स फॉर मेंबर्स ऑफ इक्वल सोशल स्टेटस, तो इस चीज को हम्म। बहुत अच्छे से फॉलो करते थे कि कोई भी फिजिकल चीज आपको नहीं कराएंगे अंदर, कोई भी रगड़ा वगैरह या फिर कोई यूनिफॉर्म खराब नहीं कराएंगे आपकी। यू विल बी जेंटलमैन कैडेट्स, आप अच्छे से जाओगे, बट आपको मेंटली टॉर्चर करते थे वहां पे। कि मान लो कि जैसे मैं दूध वाला इंसिडेंट बता रहा था कि 10 गिलास दूध की पिला दी, वो खाना खिला रहे हैं एक तरीके से आपको, बट आपके लिए वो पनिशमेंट हो गई है। या फिर ऐसा होता था कि रात को देर वॉज अ थिंग वी कॉल्ड ओटीए शेक। तो हम्म। ओटीए शेक में क्या होता था कि आपका दूध रहता था उसमें एक सिप ली, और फिर उस सिप में सीनियर यूज्ड टू से कि इसमें सब्जी मिलाओ, इसमें सॉस मिलाओ, इसमें अचार मिला लो, पिकल जो होता था अरे। वो मिला लो, और उसको ओके। मिक्स करके पता नहीं, वही बहुत गंदा सा शेक बन जाता था, फिर उसको पियो। तो वो भी एक ट्रेडिशन होता था, आई डोंट नो व्हाई, पर वो सारी चीजें कराई जाती थी, दैट वाज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। हम्म। तो रात को बहुत अच्छे से खाना मिलता था। देन जैसे आपका डिनर हुआ, यू केम बैक टू योर प्लेटून्स और कंपनीज जो भी है उसके अंदर वापस आते हो, राइट। और वहाँ पे आपको फिर टाइम मिलता है, लाइक 8:30 या 9 बजे, 9 बजे तक बेसिकली आप फ्री हो जाते हो, फिर 9 से 10 आपके पास टाइम होता है। यू कैन डू कोई भी प्लेटून का इवेंट चल रहा है, मान लो क्रॉस कंट्री चल रही है, तो हम्म। सीनियर्स जो कोर की एक्सरसाइज करा देंगे, या फिर हम्म। कोई रनिंग पे ले गए, इस टाइप की चीज होगी। मान लो कोई और इवेंट है कि फुटबॉल आ रहा है, तो थोड़ी बहुत फुटबॉल की प्रैक्टिस कर ली 9 से 10, बिल्कुल। या और कोई और इवेंट है, तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इवेंट कि कोई इवेंट आ रहा है या कुछ भी, कोई तो उस पे खाली नहीं छोड़ते हैं आपको 9 से 10। तो 9 से 10 आप कोई ना कोई चीज कर रहे होते हो, 10 बजे आपका लाइट्स आउट होता है, और 10 बजे से पहले आपको ऑर्डर्स पास होते हैं, बेसिकली जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो आपको बताया कि अगले दिन ये सारे इवेंट्स हैं, यहाँ यहाँ आपको जाना है, क्योंकि हर दिन का हमें खुद से तो पता नहीं चलेगा, जो सीनियर्स रहते हैं उनको ऑफिसर्स ऑर्डर्स देते हैं, वो ऑर्डर्स हमें पास करते हैं कि कल आपका ये चीजें हैं और यहाँ पे आपको जाना है, तो फिर नेक्स्ट डे सेम रूटीन हमारा चलता है। What about weekends? Do you get any liberty during Sundays? सो वीकेंड्स का ऐसा है मैम कि हाँ, और एक और चीज जो मिसिंग आउट मैंने वो कर दी कि घर पे बात करना या फैमिली से कैसे कांटेक्ट करना। Right. तो ऐसा रहता था कि फोन्स तो आपको अलाउड होते नहीं एकेडमी के अंदर। Mm-hmm. सो बेसिकली ऑन संडेज यूज टू गेट द फोन, और अभी स्टार्ट हुआ है वो ट्रेडिशन भी, बट इनिशियली फोन्स होते नहीं थे। देयर वाज नो सिस्टम कि आपको फोन इश्यू हो रहे हैं आप बात कर रहे हो। इट वाज लाइक कि लैंडलाइंस वगैरह हो रहे थे एकेडमी के अंदर, या फिर स्पेक्स वगैरह एक सिस्टम लग रहा था जहाँ से आप कॉलिंग कर सकते हो। Okay. फ्यू पीपल जिनका आपने नंबर दिया है, लाइक 4-5 लोगों का हमें नंबर देना होता था। Mm-hmm. उनको स्पेसिफिकली आपको कुछ टाइम मिलता था कि महीने का इतना स्पेसिफिक टाइम है, एक इंसान से इतना ही आप बात कर सकते हो, तो उसमें एक टाइमिंग्स फिक्स रहती है। तो Mm-hmm. उस तरीके से आपको मिलता था, और उन्हीं नंबर पे आप मिला के कॉल कर सकते थे। तो Right. संडेज को वी यूज्ड टू गेट टाइम, और सीनियर्स भी ऐसे रहते थे कि हाँ संडे का ही दिन मिलता है, तो उस टाइम पे आपको टाइम मिलता था घर पे बात करने का और ये सारी चीजें करने का। तो संडे यूज्ड टू बी अ लिटिल लेस हेक्टिक एज कम्पेयर टू दी अदर डेज, थोड़ा फ्री टाइम मिलता था। और लिबर्टीज का ऐसे था कि बेसिकली देयर वाज अ टेस्ट, डीएसटी, अगर वो टेस्ट पास करते हो तो ही आप लिबर्टी जा सकते हो, और अगर Okay. आपकी कोई पनिशमेंट नहीं है तो ही आप लिबर्टी जा सकते हो। लाइक बहुत सारी बाउंडेशन रहती है लिबर्टी जाने के लिए, लाइक लिबर्टी जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक। तो ऐसा होता था कि आपने डीएसटी वगैरह पास के लिए, कोई पनिशमेंट नहीं है, देन यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर द लिबर्टी। Mm-hmm. और उस क्या होता है संडे को, देयर आर थ्री थिंग्स, वन इज कि आपको कैंटीन, और देयर वाज अ कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आप जाके सामान वगैरह ले सकते हो, वो अलाउ होता था कि आप अपनी बाइसाइकिल से स्क्वाड बना के जा रहे हो और वहाँ पे सामान वगैरह कैंटीन वगैरह से लेके आ रहे हो, क्योंकि हमारा कैडेट वाला जो कैंटीन कार्ड होता है वो बन जाता है, वहां से हम कैंटीन से सामान लेके आ सकते हैं। Okay. दूसरा वो गेस्ट गेस्ट अलाउड होते हैं, तो आप अगर लिबर्टी नहीं जा रहे हो तो यू कैन जस्ट कॉल योर गेस्ट, जो आपके अगर कोई रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आसपास अगर रह रहे हैं आपके, यू कैन Mm-hmm. जस्ट कॉल देम। वहाँ पे गेस्ट एरिया होता था, कैफेटेरिया रहता था, Mm-hmm. और वहाँ पे यूज टू सिट और उनसे बात वगैरह करना। एंड टॉकिंग अबाउट लिबर्टी, तो जो लोग गेस्ट वगैरह और ये सब नहीं बुला रहे, दोज हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर द लिबर्टी, वो सुबह अराउंड 10-11 बजे लिबर्टी के लिए जाते थे, एंड शाम को दे यूज टू गेट टाइम 6 बजे तक लिबर्टी का। Mm-hmm. तो Okay. इट साउंड्स वेरी एक्साइटिंग योगेश, सुनने में इतना अच्छा लग रहा है। जो छोटी छोटी चीजें हैं, 5 मिनट की कीमत और ये सब चीजें, जैसे आप बता रहे थे कि इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा हो जाता है। आई मीन टू अ सिविलियन लाइक मी who has not experienced any of it, but it sounds very interesting, it sounds very fascinating, so I'm sure कि ट्रेनिंग का टाइम बहुत मेमोरेबल है आपका, एंड ये बहुत कम यस, लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिलता है. But there are so many यस, things regarding academy life. They are glorified on social media. So that is the reason I यस, want to now move ahead to the rapid fire round. And there are certain myths यस, and there are certain realities. So I'll be asking one after the other. I want to know your opinion. Is it true? Is it partially true? Or it's false? So I'll just start यस, one after the other.
So the first thing is like only athletes survive the training. Ma'am, I think it's not true. Okay. Because if we'll talk about द ट्रेनिंग पीरियड, तो बेसिकली ट्रेनिंग का मतलब ही होता है कि आपको चीजें सिखाना। और बहुत सारे मेरे जैसे कैंडिडेट्स होते हैं जो सिविल लाइफ से बिल्कुल मूव ऑन करते हैं एकेडमी लाइफ में, और Hmm. उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता कि वो किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं या फिर कोई एथलीट रह चुके हो। तो यार, लाइक मोस्ट ऑफ द कैडेट्स जो जिनको कुछ भी नहीं आता है, Mm-hmm. एंड दे आर लर्निंग दी थिंग्स फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से चीजें सीखते हैं, दे आउट परफॉर्म द एथलीट्स ऑल्सो समटाइम्स। ऐसा होता था क्रॉस कंट्री में बहुत अच्छे भागने वाले लोग रहते थे एकेडमी के अंदर, Hmm. बट उनसे बेटर वो लोग कर जाते थे जिन्होंने कभी अपने लाइफ में भागा ही नहीं होगा। तो आई थिंक Okay. इट्स अ मिथ कि लोगों को लगता है ऐसा करते हैं। बहुत जीरो लेवल से जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता, वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलना भी सीख जाते हैं, बहुत Hmm. अच्छी अच्छी स्किल्स भी डेवलप कर लेते हैं, और बाकी अदर फिजिकल एक्टिविटीज बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। Okay. Academy life is all about punishments. No, ma'am, I don't think so. It is a part of your training period. It's not all about the punishments only, because वो चीजें होती है बेसिकली एज वी डिस्कस बिफोर कि कुछ सही चीजें सिखाने के लिए आपको वो पनिशमेंट दी जाती है बेसिकली, एंड आई थिंक दोज थिंग्स आर नेसेसरी ऑल्सो। अगर आप किसी चीज में बार बार गलती कर रहे हैं तो देर शुड बी अ प्रॉपर वे टू करेक्ट इट। अगर वही गलती बार बार करते रहेंगे तो चीज सही नहीं हो पाएगी। तो ऐसा Mhm. नहीं कि हमेशा आपको पनिशमेंट से मिलती है। एज आई सेड बिफोर कि मेन फोकस सीनियर का रहता है कि आपको चीजें सिखाना, एंड टू लिव लाइक ए कैडेट एंड बिकम ए फ्यूचर ऑफिसर, तो उस पर आपका मेन फोकस रहता है। तो वो Okay. एक तरीका है कि आपको पनिशमेंट दे के वो चीज सिखा रहे हैं, क्योंकि सबका आई थिंक इट्स अ ह्यूमन नेचर कि प्यार से इतनी आसानी से लोग समझते नहीं है। तो Mhm. वो मुझे लगता है कि पनिशमेंट्स आर नेसेसरी। What about seniors? They are always harsh. No, ma'am, I don't think so. Like, I would partially agree on this thing कि always harsh, like they are meant to be like that only. As I said कि अगर वो बिल्कुल ही आपके साथ कैजुअल हो जाएंगे और बहुत फ्रैंक हो जाएंगे तो आप उस चीज को सीरियसली नहीं लोगे। और बेसिकली इफ विल टॉक अबाउट आर्म फोर्सेस, तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन दी हायरार्की, और जो आपकी सीनियरिटी रहती है उस चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आपका जूनियर ही आपकी बात नहीं मानेगा तो हाउ विल दी मेन जो नीचे का स्ट्रक्चर और पूरा Mhm. चीजें वो कैसे चलेंगी। तो बेसिकली आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस उसे कह सकते हैं, हार्शनेस नहीं कहेंगे, थोड़ा सा Okay. स्ट्रिक्ट आपके सीनियर को बेसिकली होना पड़ता है आपके उसके लिए, जस्ट टू बिल्ड अप द डिसिप्लिन। Okay. What about studies? They don't matter. दे डू मैटर मैम, एज आई सेड कि स्टडीज आर रियली इंपॉर्टेंट। और ऐसे लगता है कि पढ़ाई होती नहीं है, बट पढ़ाई होती है और बहुत अच्छे से होती है बेसिकली। एंड पीपल, आई विल टॉक अबाउट स्पेसिफिकली टीएस एंट्री, जो लोग मतलब बीटेक करते हैं, लाइक यू विल सी कि जो ऑफिसर्स दे गेट कमीशन Mhm. once they have completed their BTech from there, like they are doing MTech from really good colleges, IITs वगैरह से they are doing their MTech वगैरह। तो I think पढ़ाई plays a very important role in the academy. Okay. There is no personal time. There is personal times, but I would say in junior terms you won't get that much personal time। आपको personal time मिलता है, but you have to cut down that personal time from your own जो relaxation वाला time रहता है, जो आपका sleep time रहता है बेसिकली, उसमें आपको time निकालना पड़ेगा in junior terms। but as you grow up, जैसे जैसे senior terms में जाते हो, आपको अपना personal time बहुत अच्छे amount में मिलने लग जाता है। Okay. Everyone get injured during the trading. नो मैम, आई वोंट से कि एवरीवन गेट, आई वुड पार्शियली एग्री ऑन दैट पार्ट कि इंजरी, लाइक इफ विल टॉक अबाउट स्मॉल इंजरीज, तो Hmm. दोज आर वेरी कॉमन कि आप अगर दिन भर भाग ही रहे हो तो बहुत Mhm. अच्छे चांसेस है कि आपका पैर मुड़ सकता है। इट्स Hmm. नॉट अबाउट एकेडमी ओनली। अगर हम सिविल लाइफ में भी उस चीज को देखें कि हम दिन भर एक ही चीज कर रहे हैं तो देर हाई चांसेस कि उस चीज में हमें इंजरी हो सकती है। कि हम दिन भर फुटबॉल खेल रहे हैं तो देर हाई चांसेस कि हम इंजर्ड हो जाए उस चीज में। इट इज द सेम थिंग कि एकेडमी में अगर हम भाग रहे हैं, पीटी कर रहे हैं और फिजिकली बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, तो देर आर हाई चांसेस कि आपको कोई ना कोई इंजरी छोटी मोटी हो जाए। बट बहुत बड़ी इंजरी होना इट्स वेरी रेयर थिंग। कि आपको थोड़ी भी छोटी सी इंजरी होती है तो देर आर सीनियर्स और आपके ऑफिसर्स उस्ताद वगैरह होते हैं उस Hmm. चीज को केटर करने के लिए और उस चीज को देखने के लिए। मेडिकल फैसिलिटीज आपको प्रॉपरली मिलती है। तो Okay. थोड़ी सी भी इंजरी होती है आपको फील होता है कि कहीं पेन हो रहा है या फिर किसी भी टाइप की इशू होता है, तो Hmm. दोज थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। Okay. Carrot constantly think about quitting the academy. No, ma'am. I think it's false. Like there are thoughts, there are very low moments during the training times. आप नए नए जब जाते हो इनिशियली, इट्स Okay. ड्यूरिंग दी फर्स्ट टर्म ओनली, क्योंकि बाद में तो यू आर यूज टू दैट पार्ट। Hmm. इनिशियली हो सकता है कि आप नए नए गए हो, आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, और आप कभी बाहर रहे ही नहीं हो बेसिकली। और Hmm. मोस्टली ऑफ अस आर लाइक दैट ओनली कि हम अपने फैमिली के साथ ही अपना चाइल्डहुड स्पेंड कर रहे होते हैं। और बहुत रेयर लोग होंगे ग्रेजुएट एंट्रीज में वी कैन से कि लोग कॉलेज वगैरह करके और थोड़ा बाहर रहते हैं, देन दे गो टू द एकेडमी।
बट 10+20 इज लाइक एनडी और टीएस एंट्री, उसमें बेसिकली लोग अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, एंड Hmm. एट दैट टाइम यू आर वेरी इमोशनली और बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हो अपने पेरेंट्स के साथ। तो Hmm. देर आर टाइम्स इन एकेडमी जब आपको घर की याद आती है, होम सिकनेस होती है, और पेरेंट्स की याद आती है, और Hmm. फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा चीजें चल रही होती है, तो देर आर थॉट्स इन माइंड्स की मैं छोड़ दूं कि ऐसे कर दूं, बट उन Hmm. थॉट्स और जो भी आपके आइडियाज आ रहे हो तो उनको दबा दिया जाता है। जैसे ही अगर कोई ऐसा होता भी है, कोई जूनियर सोचता है ऐसा करके, उल्टा मुझे याद है कि कोई कैडेट गलती से बात भी कर देता है कि सर मुझे विड्रॉ करना है, मुझसे नहीं हो रही ट्रेनिंग, उल्टा उसको और रगड़ा दिया जाता था, उसके पूरे कोर्स को रगड़ा दिया जाता था, और फिर उसे मेक श्योर कराया जाता था कि अब तू नहीं छोड़ेगा उस चीज को। तो वो Well, बेसिकली उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। mhm. The Faucis are meant to be tough because अगर training इतनी easy होगी तो how they are going to protect the यस मैम। they are the backbone of the country, how they are going to protect the country. So बहुत सारी चीजें होती हैं, तो that is the reason these questions are made like that. The next one is a little funny, but I still want to ask you, academy life is exactly like what you see in movies and reels. नो मैम, इट्स नॉट लाइक दैट। Hmm. मूवीज में आपको बहुत ज्यादा ऐसे दिखाया जाता है कि बहुत फन होती है और बहुत अच्छा चल रहा है सब, या इस तरीके से, बट इट्स टोटली डिफरेंट। एज वी डिस्कस, जो शेड्यूल रहता है दिन भर का, छोटे छोटे प्रिविलेजेस होते हैं, वो नहीं दिखाया जाता। बेसिकली इन मूवीज यू विल सी कि सबकी लाइफ सेम दिखाई जा रही है, ऑफिशियल चीजें दिखाई जाती है, बट द रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। जैसा दिखाया जाता है वैसा नहीं होता है। Hmm. Okay. I mean, these questions were meant to be like truth versus reality. But योगेश, ऐसा बहुत बार सुनने को मिलता है, and recent time जैसे मैं सिमरत को जानती थी, and Avinash, and then a lot of and you definitely I want to talk about that thing. Why do some cadet leave the academy before commissioning? क्या reasons होते हैं? Because बहुत सारे terms float करती हैं, but nobody is aware यस about मैम। the real scenario and what happened, what really happens in the academy. So ये board out होना या injuries होना या withdrawal, इस तरह की जो terms हैं या reasons होते हैं जो कैडेट जिस वजह से academy छोड़ता है, I really want to talk about that. Ma'am, starting, there are two types of ways of getting off the academy. One is volunteer and one is non-volunteer, कि आप नहीं चाहते हो आप आउट होना, but due to some reasons you have to get out. So volunteer would be like you want to get withdrawal, आपसे ट्रेनिंग नहीं हो रही है, there are some other reasons, कि कोई Hmm. भी रीजन हो सकता है कि आप कॉप अप नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं कि उस टाइम पे आप खुद से विड्रॉल ले रहे हो। तो ऐसे टाइम से विल कॉल इट विड्रॉल, कि हम सेल्फ विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द एकेडमी। सो इट्स Hmm. कॉल्ड विड्रॉल, नॉट बोर्डेड आउट। एंड बोर्डेड आउट इज अ डिफरेंट थिंग, व्हेन अ कैडेट लीव्स ऑन इज ओन, तो उसको हम विड्रॉल कहते हैं। बट इफ ड्यू टू सम अदर रीजंस, लाइक देयर मल्टीपल रीजंस ऑफ गेटिंग बोर्डेड Hmm. आउट, द मोस्ट फेमस वन इज मेडिकल, कि आपको इंजरी हो गई, आर नॉट एबल टू हील दैट thing in the given time period, तो you will be get it boarded out from the academy, क्योंकि you won't be able to do training। और वो आपको 6-7 महीने या 1 साल के लिए रेस्ट पे नहीं रख सकते, बिकॉज गवर्नमेंट इज पेइंग ऑन यू, एंड जो एक्सपेंसेस होते हैं आपके, इफ विल होल्ड दैट इन बिटवीन, तो आपको उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। मे बी वो चीज हील ना हो पाए, इन फ्यूचर आपको दिक्कत दे। तो उन बेसिस पे इफ दे सी कि दिस इंजरी इज वेरी बिग, और आगे आप उस चीज के साथ कोप अप नहीं कर पाओगे ट्रेनिंग में, तो Hmm. you get medically voted out। And there's some other reasons also, like if you are not able to pass your compulsory test in PT, physical training में there's some mandatory test, अगर आप उनमें बार बार फेल हो रहे हो, अगर किसी कैडेट को फियर ऑफ हाइट है, 10 मीटर जंप होता है बेसिकली, तो कोई बहुत सारे कैडेट होते हैं कि जंप नहीं करते, तो ऑन दैट रीजन ऑल्सो कैडेट्स गेट बोर्डेड आउट, कि आप जंप नहीं कर रहे हो, आप पीटी में बहुत वीक परफॉर्म कर रहे हो, कि हर बार फेल ही होते जा रहे हो, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है आपकी, उस Hmm. बेसिस पे यू गेट बोर्डेड आउट। ऑन द बेसिस ऑफ लाइक आप एकेडमिक्स में फेल हो रहे हो बार बार, एक ही सब्जेक्ट में बार बार, तो आपकी एक लाइक एकेडमिक्स इज अ पार्ट, जो आपका साइड बाय साइड, अगर सेमेस्टर और टर्म को हम बोले तो इट्स अ सेम थिंग, कि एक Okay. सेमेस्टर में एक टर्म आपका कंप्लीट हो रहा है, तो आपका बार बार थोड़ी रिपीट कराएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस लग रहे हैं, और आप एक पार्ट की वजह से आप मतलब बार बार एक ही एग्जामिनेशन में फेल हो रहे हो। इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट है, मान लो मैथमेटिक्स, उसमें कैडेट बार बार फेल हो रहा है, तो ऑन दी बेसिस ऑफ एकेडमिक्स यू विल गेट बोर्डेड आउट। Okay. So no Then on the compromise in basis of terms of. LQs also, like sometimes cadets get selected, but due to some reasons उनके अंदर lack of OLQs during the training times दिखता है, तो on that grounds also people get boarded out। बहुत rarely होती हैं ये चीजें, मतलब I haven't seen in my training time कि ऐसा कुछ हुआ हो। Okay. Major was medically boarded out। So these are the difference basically in the withdrawal and boarded out। Yogesh, after clearing so much tough competition, getting into the academy, you have wonderful memories we already have talked about. What was your reason to leave the academy? Ma'am, like I didn't left the academy, as I mentioned कि in my videos I used to say
कि आई हैड एन इंजरी, आई टॉक्ड अबाउट द स्पेसिफिक पार्ट कि ऐसे इंजरी हुआ था, ऑन दैट बेसिस आई गॉट बोर्डेड आउट. Okay. एंड यस मैम. How's life going after that? Because it really get tough on a person जो इतना ज्यादा पुट इन कर दे इस तरह के रिग्रेस रूटीन में अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लेना एंड देन इस तरह से कोई चीज हो जाए. सो हाउ इज योर लाइफ गोइंग आफ्टर दैट? एंड आई ऑल्सो एम अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट यू आर गिविंग mentorship to the you know students who are preparing for the SSB. So how it's going यस. life, how is basically I want to know कि अभी आप क्या कर रहे हैं, how you have maintained that calmness in yourself, because इतना बड़ा setback आता है तो आप क्या कोई भी इंसान अगर उस जगह पे होता है तो बहुत difficult हो जाता है. But then you started YouTube and I think this is one of the यस best मैम. decision I would just say, because you're inspiring many more other यस. students to go for armed forces. So how's your life after that? Yes, ma'am. So talking about the phase when I got voted out, it was really difficult for me to be honest. Because it was my dream when, like when I used to prepare for armed forces, my father was also in army. So it was my dream कि मैं भी जाऊं, and I cleared all those things. और उसके बाद भी like अगर हम खुद को compare करें छोटे से फेज में कि हम रिटर्न में अगर फेल हो जाते तो हमें कितना बुरा लगता है कि I couldn't clear the written part. फिर अगर हम एसएसबी चले जाते हैं, स्क्रीन आउट हो जाते हैं, वी फील वेरी बैड. एंड Hmm. उसके बाद अगर कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं तो उससे ज्यादा बुरा लगता है. उसके बाद अगर हम मेडिकल आउट हो जाते हैं तो वी फील वेरी बैड. एंड द वर्स्ट सिविलियन कैन फील कि वो मेरिट आउट हो गया. Hmm. दैट इज द थिंग कि आप मेरिट आउट हो जाते हो, यू फील वेरी बैड कि आपने सब कुछ क्लियर कर लिया. बट इन माई केस आई डिड लाइक 3 years ऑफ ट्रेनिंग. तो आई वॉज लाइक कि घर पे भी सेम माहौल था एंड माई माइंड सेट वॉज ऑल्सो क्लियर कि आई एम गोइंग टू गेट कमीशन और ऑफिसर बन जाऊंगा. तो बहुत एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कह सकते उनको, लाइक इट वॉज द रियलिटी. अगर देखा जाए तो वही चीजें होने वाली थी जो मुझे चाहिए थी. बट Hmm. अनएक्सपेक्टेडली लाइफ टर्न और चीजें बहुत ज्यादा ऐसे हो गया कि मेरे को समझ में नहीं आया इनिशियली. व्हेन आई गॉट बोर्डेड आउट, आई केम होम एंड इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ. लाइक आई वाजंट गोइंग आउट ऑफ होम. घर पे भी इट वाज लाइक सब सैड सैड है और मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ. इट वाज लाइक वेरी डिप्रेसिंग. एंड व्हेन आई वाज कमिंग आउट ऑफ द एकेडमी, वन ऑफ माय इंस्ट्रक्टर, लाइक ही वाज माय ऑफिसर एट दैट टाइम, ही सेड मी कि लाइक ही उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया कि बेसिकली योगेश ऐसा होगा, अभी आप जा रहे हो. इट इज, मेरे को उस टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बट कुछ कुछ बातें थी जो उनके दिमाग में मेरे को बाद में हिट की. ही सेड कि इट इज अ काइंड ऑफ शॉक या ट्रॉमा आप कह सकते हो लाइफ में. एंड दे आर डिफरेंट फेजेस ऑफ इट कि आपको पहले चीजें समझ में ही नहीं आएंगी, आप बहुत रोओगे, बहुत उस चीज को ऐसे करोगे, यू विल जस्ट क्रिटिसाइज कि इसकी वजह से हो गया, मैं ऐसे कर लेता तो सही रह जाता, या उस दिन Hmm. ऐसा नहीं होता. तो यू विल जस्ट मेक डिफरेंट रीजंस टू मेक इट कि काश ऐसा नहीं होता और ऐसा हो जाता. या फिर यू विल जस्ट वॉन्ट एक्सेप्ट दैट थिंग. और जब तक आप में एक्सेप्टेंस नहीं आ जाएगी तब तक आप उस फेज से मूव ऑन नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में. तो ही सेड कि जब जितना जल्दी हो सकता है यू हैव टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स, और तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे. तो मेरे को लगभग 2 महीने लग गए थे टू गेट आउट ऑफ दैट फेज. आई वाज लॉक्ड इन इनसाइड माय हाउस. मैं किसी से शेयर नहीं करता था. लाइक मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था डोंट शेयर विद एनी ऑफ द रिलेटिव्स, या किसी फ्रेंड्स को भी नहीं बताया मैंने. तो बहुत ज्यादा ऐसे इट वाज वेरी सफोकेटिंग. बट वन डे लाइक आई डिसाइडेड कि नहीं यार ऐसे नहीं. मैं लाइक आई जस्ट यूज्ड टू राइट. मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं सिर्फ लिखता था अपनी डायरी में कैसे ऐसे. एंड वन डे, मे बी वन नाइट, आई वाज जस्ट राइटिंग एंड आई थॉट कि यार ऐसे तो आई वोंट बी एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पार्ट. तो मुझे ये चीजें शेयर करनी चाहिए एटलीस्ट किसी के साथ, तो ताकि मुझे थोड़ा हल्का फील हो, बेटर फील हो. आई Okay. स्टार्टेड गोइंग आउट. इट इज फॉर एवरीवन, नॉट रिगार्डिंग मी कि मैं बोर्ड आउट हो गया. तो इट कैन बी लाइक फॉर एनीवन, एनी फेज ऑफ लाइफ. कोई भी चीज हो सकती है लाइफ में, कि जरूरी नहीं है कि आप इसी चीज से रिलेट करो. देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन लाइफ, मल्टीपल ट्रॉमास इन लाइफ. अगर आप सिविल में, आपके पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, एकेडमिकली कॉलेज में कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. आई वुड सजेस्ट यू कि आप बाहर जाओ, टॉक टू पीपल, Hmm. just tell them whatever things of feeling or facing जो भी है, there will be multiple path that will be open for you. और आपको बहुत सारी चीजें दिखने लग जाएंगी कि यार कोई बात नहीं, लाइफ इज नॉट दैट स्मॉल कि आप यहीं पे चीजों को रोक लो. आई रियलाइज एट दैट टाइम, अपने दोस्तों से मिला एंड दे मेड मी फील वेरी गुड कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया जो होना था. और दोस्तों में देर इज अ फन वे ऑफ लाइक हैंडलिंग दोस थिंग्स, कि वो बिल्कुल सीरियसली उन चीजों को नहीं लेते हैं. अगर कुछ सीरियस भी हो गया तो उसको बिल्कुल मजाक के मैनर में कि ठीक है ना यार, चल हो गया, इस तरीके से. तो आई Hmm. फेल्ट थोड़ा सा मैं चीजों को कंफर्टेबल होता गया. एंड एट दैट टाइम कि यार मुझे लगा कि अगर मेरे को और अच्छे से इस चीज से बाहर निकलना है, आई जस्ट हैव टू शेयर दिस ऑन अ ग्रैंड लेवल. तो मैंने बिल्कुल बुलवाई लिया और आई थॉट कि आई विल जस्ट रिकॉर्ड अ वीडियो. मुझे नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं किया था ये चीज. बस आई जस्ट थॉट कि मेरे को बस बताना है सबको कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, एंड आई जस्ट फेस दिस थिंग. और ये मेरी जर्नी थी. मे बी लोगों का जो भी रिस्पॉन्स रहेगा, बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर ताकि मैं उस चीज से बाहर निकल पाऊँ.
तो आई Right. जस्ट मेड अ वीडियो और लोगों ने देखा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो आई फेल्ट रियली गुड कि हाँ ठीक है। ऑल्सो आई गॉट कनेक्टेड टू मल्टीपल कैडेट्स जो लोग बोर्ड आउट हुए थे उस चीज से। आई Mm. जस्ट टॉक टू देम, उन्होंने मेरे को सिखाया कि यार हम भी तो कर रहे हैं, वी आर डूइंग मच बेटर देन व्हाट वी हैव डन आफ्टर गेटिंग कमीशन। तो आई फेल्ट लाइक इट वाज रियली गुड पार्ट कि उन लोगों से मैं कनेक्ट हुआ जो मेरे सीनियर्स थे, बोर्ड आउट हुए थे अदर अकेडमीज से, नॉट स्पेसिफिकली टीएस एनडीए से, ओटीए से, आईएनए से, बहुत सारे लोगों से मैं मिला। एंड आई टॉक टू देम, कनेक्टेड टू देम, एंड आई फेल्ट कि लाइक इट वाज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अभी Right. भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी चीजें हैं मैं कर सकता हूँ लाइफ में। एंड Mhm. फ्रॉम दैट पार्ट आई डिसाइडेड, फिर मैंने और वीडियोस बनाई। एंड जैसा रिस्पॉन्स आया स्टूडेंट्स का, आई स्टार्टेड कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि कैसे कैसे मैंने प्रिपरेशन की और क्या मेरी जर्नी रही है बेसिकली, Mhm. क्या-क्या एकेडमी मैंने चीज़ें सीखी, क्या गलतियाँ की, आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो दिस वाज़ माय मेन एजेंडा कि मैं लोगों को सिखा सकूँ। लाइक वो मैं लाइफ़स्टाइल दिखा सकूँ उन्हें कि लाइक जैसे हम बात कर रहे थे कि मूवीज़ में कुछ और दिखता है बट रियलिटी में कुछ और होता है। तो मे बी आई कैन जस्ट मेक देम फील कि जो रियल लाइफ़ में जो चीज़ें हो रही है एकेडमी के अंदर, वो मैं उन्हें बता सकूँ कि यार ऐसा-ऐसा एकेडमी के अंदर होता है बेसिकली। तो Mhm. दैट वाज़ माय मेन एम टू स्टार्ट द एट द सेम टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय दिस, तो पीपल स्टार्टेड आस्किंग द क्वेरीज़ कि भैया यू आर रिकमेंडेड एंड यू कैन स्टार्ट गाइडिंग अस, स्टार्ट टीचिंग अस फॉर द एसएसबी, क्योंकि जो भी चीज़ें आपने 3 साल ट्रेनिंग में देखी है। तो लाइक आई वाज़ द सेम कैंडिडेट, मैंने भी एसएसबी क्लियर किया था। आई वाज़ नॉट लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड था या मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है उस चीज़ में। Mhm. मेन थिंग जो मैं आज भी चीज़ों को गाइड करता हूँ कि बेसिकली मेरे को उस चीज़ में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं रहा, मैं कोई इंटरवियर नहीं रहा किसी बोर्ड के अंदर, बट आई हैव दैट एक्सपीरियंस। मैंने Mhm. भले ही एसएसबी एक ही बार क्लियर किया अपने टाइम पे, बट आई हैव बीन टू मल्टीपल एसएसबीज़ और मैंने देखी वो चीज़। बट माय Mhm. मेन पार्ट वाज़ कि मैं जब अकेडमी में गया, तो हर कोई लोग परफेक्ट नहीं थे। जैसे हम एसएसबी में देखें और हमारे बहुत सारे मिथ्स रहते हैं कि यू हैव टू बी रियली गुड इन एकेडमिक्स, यू हैव टू बी रियली गुड इन स्पोर्ट्स, आप फिट होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते थे। बट Mhm. व्हेन आई वेंट टू एकेडमी, मैंने ऐसे-ऐसे कैडेट्स देखे जिनको खेलना भी नहीं आता कुछ भी, कोई स्पोर्ट्स, जिनकी इंग्लिश इतनी वीक है, लाइक दे आर फ्रॉम वेरी बैकवर्ड एरियाज़, उनको अच्छे से बात करना भी नहीं आता है, दे आर स्टिल रिकमेंडेड एंड इनसाइड द एकेडमी डूइंग Mhm. ट्रेनिंग विद मी। तो मैंने True. देखा कि यार इसपे दे डोंट नीड दीज़ थिंग्स कि उनको पढ़ने में अच्छा चाहिए या फिर खेलने में अच्छा चाहिए। तो आई रियलाइज्ड और मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू निकाला एट दैट टाइम। अब मैं Mhm. आई यूज्ड टू थिंक अबाउट दीज़ थिंग्स और मैं ऐसी चीज़ें नोट डाउन करता रहता हूँ। एंड आई Mhm. केम टू एन एनालिसिस कि ड्यूरिंग एसएसबी वी टॉक अबाउट ओएलक्यूज़। डेफिनिटली ओएलक्यूज़ चाहिए होती हैं, बट एज़ वी से कि 15 ओएलक्यूज़ होती हैं, तो आई वुड से कि नॉट ऑल 15 ओएलक्यूज़ आर रिक्वायर्ड। There are two type of OLQs. One are the trainable ones and one are the non-trainable ones. तो ट्रेनेबल वो होती हैं जो चीजें आपकी 3 साल की ट्रेनिंग, 4 साल की ट्रेनिंग है ना, उसमें वो चीजें आपको सिखा देंगे, वो आप में नहीं होंगी तो भी चलेगा। बट देर आर नॉन ट्रेनेबल्स वन जिसमें आप बिल्कुल भी फॉल्टर नहीं कर सकते, वो आप में होनी ही चाहिए। जैसे कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, यू शुड बी लॉयल टुवर्ड्स वट एवर आर्म्स, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो उसके ऑनेस्टी, आप झूठ नहीं बोलने चाहिए किसी चीज़ों में, और बेसिकली आपके अंदर थोड़ा इनिशिएटिव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपके अंदर अगर थोड़ी होंगी तो देन ओनली यू विल बी एबल टू कोप अप द ट्रेनिंग। अब मान लो Mhm. कोई इंसान है जिसको बचपन से ही हैज़ द हैबिट ऑफ एनीथिंग, लाइक कोई भी खराब हैबिट है उसके अंदर कि ही जस्ट लाई एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो बचपन से कर रहा है 20 साल से, वी कांट इम्प्रूव उस 3 साल की ट्रेनिंग में। वहाँ पे ही विल लाई एंड ही विल बिकम दैट काइंड ऑफ ऑफिसर। बट True. आई रियलाइज़ कि अगर आप कम्युनिकेशन में वीक हो, आप इंग्लिश अच्छा नहीं बोलते हो इतना, आप कोई स्पोर्ट अच्छा नहीं खेलते हो, पढ़ाई में अच्छा नहीं हो, तो दीज़ आर दी ट्रेनेबल पार्ट्स जो आप अकेडमी में जाके सीख सकते हो। आई वाज़ आल्सो नॉट परफेक्ट। तो मैंने अपने एनालिसिस के बेसिस पे स्टार्टेड कि मैं जब लाइक अपने जो गाइडेंस देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं उनको ये नहीं बताता कि यार तुम इस पार्ट में ऐसे स्टोरी लिखो, ये करो। माय मेन फोकस इज कि आपको क्या चीजें दिखानी है और सामने जो एसेसर है उसको क्या चीजें चाहिए, बेसिकली व्हाट आर थिंग्स आर रिक्वायर्ड आउट ऑफ अ कैंडिडेट टू गेट सेलेक्टेड। तो माय मेन फोकस इज दैट कि जरूरी नहीं हर इंसान हर चीज में परफेक्ट हो, बट हमें उन चीजों में एटलीस्ट परफेक्ट होना चाहिए जो सामने वाले को चाहिए। तो आई फोकस ऑन दीज थिंग्स और इन्हीं के बेसिस पे आई लाइक स्टार्टेड माय इनिशिएटिव, और मैं एसएसबी गाइडेंस जो है पिछले 3-4 महीने से कर रहा हूँ। एंड आई हैव कनेक्टेड टू मेनी पीपल्स, लाइक आई हैव गाइडेड मोर देन अराउंड 250 पीपल्स, स्टूडेंट्स जो थे मेरे से कनेक्ट हुए। आई हैव गिवन देम गाइडेंस और उनमें से मल्टीपल पीपल हैव बीन रिकमेंडेड। तो आई फील रियली गुड कि मे बी देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट, भगवान ने चाहा होगा कि शायद मैं ऑफिसर ना बन पाऊँ, तो क्या पता मेरे किस्मत में ऑफिसर बनाना लिखा हो। मे बी आई कैन जस्ट गाइड देम एंड शेयर माय एक्सपीरियंस एंड दे बिकम द फ्यूचर ऑफिसर्स लेटर ऑन।
Well, Yogesh, after hearing everything about what you've experienced and how you have cope up with it, you definitely have that military mindset. And ये चीजें ट्रांसफर ऑन करना अपने जूनियर्स के लिए, आई एम श्योर वो सारे अकेडमी ज्वाइन करेंगे. सो इट रियली is very important to the people who are going to watch those videos. So I'm really proud of you. I have to say that. And मैं तारीफ करने में कंजूसी नहीं करना चाहती, because a person like you who really chose to accept those things and then उस चीज को पॉजिटिवली लेके अपने बाकी जूनियर्स को ये ट्रांसफर ऑन करना है, ये बहुत बड़ी बात है. एंड यू आर Yes, डूइंग मल्टीपल थिंग्स इन लाइफ, इट जस्ट नॉट दैट. सो आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल दोज थिंग्स. बट काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 11th 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड yes, ma'am. उधर जब एकदम से हम कंपटीशन के अंदर वी जस्ट स्टेप इनटू इट. So it's very difficult to navigate कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए. So for those people, what is your advice and how should they start preparation? यस मैम. सो लाइक बेसिकली मुझे भी बहुत ज्यादा क्वेरी रहती है इस चीज के रिगार्डिंग कि जो 11th 12th में बच्चे हैं, लाइक इस टाइम पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा है एंड Right. पीपल आर अवेयर अबाउट दी आर्म फोर्सेस, तो वो चाहते हैं कि इनिशियली बहुत स्टार्टिंग के फेजेस में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. तो 11th इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन. बट बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें और किन चीजों पे फोकस करें, क्या बोर्ड्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दें. तो आई वुड Right. से कि लाइक बोर्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ, और जो 11th 12th क्लास की स्कूलिंग रहती है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ. तो उन चीजों को हमें बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए. लाइक आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन आफ्टर 12th. जब मैंने बोर्ड चली Okay. तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की. बट Hmm. अभी से अगर कोई लोग फोकस करना, जो बच्चे फोकस करना चाहते हैं, दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन. बट एट द सेम टाइम आपकी और मेजर फोकस होना चाहिए, आपकी स्कूलिंग पे होना चाहिए, क्योंकि 11th 12th की जो स्कूलिंग और जो भी चीजें आप वहां से सीखोगे, दे विल बिल्कुल. हेल्प अ लॉट इन योर एसएसबी ऑल्सो, और आपकी पर्सनैलिटी को फ्रेम करने में. बेसिकली यू विल Right. पार्टिसिपेट इन मल्टीपल करिकुलर एक्टिविटीज. बहुत सारे लोग डमी एडमिशन ले लेते हैं, तो आई एम टोटली अगेंस्ट दैट पार्ट कि लाइक यू आर मिसिंग आउट मेजर थिंग्स Right. ऑफ योर Right. लाइफ जो 2 साल है. सो आई थिंक कि आपको मेन फोकस अपना स्कूलिंग पे और अपने बोर्ड्स पे देना चाहिए. एट द सेम टाइम यू कैन जस्ट टेक आउट सम टाइम, दिन में 1-2 घंटे, यू कैन जस्ट रीड अबाउट दीज थिंग्स, और यू कैन जस्ट प्रैक्टिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आप उस चीज के करना चाहते हो. तो you have to balance the things parallelly. So that is the thing. Yes, स्पेशली ma'am. जेई की प्रिपरेशन एंड बोर्ड्स, ये दोनों चीजें काफी मायने रखती हैं. आपने कैसे किया, Yes, ma'am. मुझे ये भी जानना है. बिकॉज स्कोरिंग सच अ रैंक विच इज, आई थिंक, टॉप 50 में आना काफी बड़ी बात हो जाती है. तो आपका क्या टाइम मैनेजमेंट था और आपने दोनों चीजों को, बोर्ड को एज वेल एज द जेई प्रिपरेशन एंड दी एसएसपी, आपने तीनों चीजों को कैसे बैलेंस आउट किया? Yes, ma'am. So basically, I managed all four. मैंने एनडीए हम्म. रिटर्न भी क्वालिफाई किए थे एट दैट टाइम, ओके. ड्यूरिंग माय बोर्ड्स टाइम पे. तो एनडीए रिटर्न, बोर्ड्स, जेई एंड एसएसबी प्रिपरेशन ऑल्सो. तो इट इज हम्म. वेरी सिंपल. लाइक मैं बहुत चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता था. आई यूज टू गो स्कूल रेगुलरली. मैं स्कूल जाता था अपने टाइम पे. तो मान लो कि जैसे देर आर सम सब्जेक्ट्स दैट आर डिफरेंट. जैसे राइट. एनडीए की मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो पीसीएम तो आपका है ही, जो जेई में भी काम आ रहा है, बोर्ड्स में भी काम आ रहा है, और एनडीए में भी काम आ रहा है. द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट कि आपका जीएटी वाला जो पोर्शन है, जीके वगैरह. तो हम्म. मैं मेन फोकस वो कि अगर मैं स्कूल में जा रहा हूँ और मैथ्स की क्लास चल रही है, कोई भी चैप्टर चल रहा है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, आई यूज्ड टू स्टडी देयर. मैं उस चीज को नेग्लेक्ट नहीं करता कि मैं जेई वाली क्लास में हूँ. मुझे पता था कि बोर्ड्स का वे ऑफ राइटिंग एग्जाम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जेई पार्ट. वहां पे मेरे को चीजें वैसे लिखनी है, वहां पे ऑप्शंस पे मुझे आंसर करना है. तो आई यूज टू बिल्कुल. फोकस ऑन दैट पार्ट की टीचर्स कंसेप्ट कैसे पढ़ा रहे हैं. आई यूज टू रेगुलरली टेक द क्लासेस. मैंने हम्म. अपनी स्कूल की क्लासेस ली. आई केम होम, और उसके बाद में आई जस्ट यूज टू प्रैक्टिस एनसीईआरटी क्वेश्चंस. मैंने उसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए, फिर उसी के मैंने थोड़े जेई के क्वेश्चंस उठा लिए, और उसी के मैंने थोड़े एनडी के पीवाईक्यूज उठा लिए. तो एक चैप्टर को कंप्लीटली मैंने तीनों एस्पेक्ट से कवर कर लिया, और मुझे तीनों के लिए अलग अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा. अब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पहले मैं एनडी की प्रिपरेशन कर लेता हूँ इतने टाइम पे, हम्म. या जेई की कर लेता हूँ, फिर बोर्ड्स आएंगे तो बोर्ड का पढ़ लूंगा. साइड बाय साइड लेके चलो सबको साथ में. और हम्म. आई यूज टू टेक टाइम कि दिन में 1 घंटा निकाल के मैंने कभी जीएटी का कोई वीडियो देख लिया, या फिर कोई चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिए. तो दैट वाज सफिशिएंट, कि इतना चाहिए भी नहीं होता आपको. Okay. यस We मैम. have come to an end, Yogesh, and I think if I have tried to cover all the aspect of your experience and the journey, because I really want कि जितने भी viewers देखने वाले हैं इसको, वो उससे बहुत कुछ सीख के जाए, and they message you on Instagram and on maybe on YouTube that they have learned something from this video. And thank you so much to you, because you have tried to cover each and every detail that either it's about academy, it's about the entry or the competition we have talked about, and the challenges you faced
ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस पूरे पॉडकास्ट में हर तरह की चीज़ों के बारे में बात करी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, योगेश, एंड wishing you all the very best for the journey ahead, because once a Fauji, always a Fauji. This is something which I've heard, and you have groomed up yourself like that. So for me, I see an officer, nothing less than that. But thank you so much for being here. Thanks a lot, ma'am, and thanks for giving this opportunity and this platform to connect with more aspirants. Maybe this video would help them and they would learn a lot of things from here. Thank you. Definitely, definitely. Have a good day. Thank you. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.